بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیمن فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج امر بیل ناول کے ایپیسوڈ نمبر 8 ریڈ کرنے جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں بالکل بھی آپ لوگ نہ تو کامنٹس کرتے ہیں نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ کس لیے نہیں کرتے؟ کیا ناراضگی ہے؟ کون سی ناراضگی ہے؟ ختم کر دیں، اب بہت ہو گیا، بس ہو گئی ہے اب، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ لائک کریں، کمنٹس کریں، اور جو آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں، 1-2 ناول جو ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ وہ میں ریڈ کرنا شروع کروں گی، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ لوگ کوئی تو رسپانس دیا کریں نا، ورنہ پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ رسپانس آئے گا تو میں ریڈ کروں گی، نہ رسپانس ہی نہیں آئے گا تو پھر میں چھوڑ دوں گی نا، یہی کروں گی اور کیا کروں گی۔ چلیں اب ایپیسوڈ شروع کر لیتے ہیں، اوکے؟ نہیں، مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، اس نے کچھ ندامت سے کہا۔ مگر بات تو اسے کرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں کیا کروں؟ وہ ملنا نہیں چاہتا تو میں اسے مجبور کیسے کر سکتی ہوں؟ علیزہ نے بے چارگی سے کہا۔ اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے تو اسے مجھ سے ملنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ عمر اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ علیزہ، کیا وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے؟ ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے نا، وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ علیزہ نے عمر کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ عمر کچھ دیر خاموش رہا۔ اگلی بار تم مجھ سے کہاں مل رہی ہو؟ علیزہ بلش ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، اب میں اس سے نہیں ملوں گی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ملو اور اس بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مگر وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اسے پہلے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے کہوں گا کہ میں تمہیں چھوڑ آیا ہوں، اور پھر اس سے کچھ بات چیت ہوگی۔ عمر نے جیسے میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں، اور پھر اس سے کچھ بات چیت ہوگی۔ عمر نے جیسے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو؟ علیزہ کو فکر ہونے لگی۔ ناراض کس بات پر ہوگا؟ اس طرح آپ سے ملوانے پر؟ تم نے خود کہا ہے وہ ایک مختلف آدمی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے تو ناراض نہیں ہوگا، اور میں اس سے لڑنے تو نہیں جا رہا۔ اچھے ماحول میں بیٹھ کر اس سے کچھ اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اس میں خفگی کہاں سے آ جاتی ہے؟ عمر اس سے مطمئن کر رہا تھا۔ علیزہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ تم اسے کہاں بلواؤ گی؟ برٹش قونصل، اس نے کہا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو میرے برٹش قونصل جانے پر اس لیے اعتراض ہوا تھا؟ وہاں ذوالقرنین صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ علیزہ اس کی بات پر خجل ہو گئی۔ بہرحال تم برٹش قونصل کی بجائے اسے پارک میں بلواؤ، عمر نے جگہ طے کرتے ہوئے کہا، یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں۔ تیسرے دن وہ عمر کے ساتھ ایک پارک کی پارکنگ میں موجود تھی۔ کار سے اترتے ہوئے وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس نے ذوالقرنین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آج عمر کو بھی ساتھ لا رہی ہے، اور اب وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں ذوالقرنین اس بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ ذوالقرنین پارک کے اندر مخصوص بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے علیزہ نے اسے دور سے ہی کھڑے ہوتے دیکھ لیا۔ شاید اس نے علیزہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف علیزہ کو بلکہ اس کے ساتھ آتے ہوئے عمر کو بھی، اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے ذوالقرنین کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور ناگواری کے تاثرات دیکھے تھے۔ ہیلو، میں عمر ہوں، آپ یقیناً ذوالقرنین ہیں۔ عمر نے اس کے پاس پہنچ کر نہایت دوستانہ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذوالقرنین نے کسی مسکراہٹ کے بغیر اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے ملنے کا خاصا شوق تھا مجھے، علیزہ کافی تعریف کرتی رہتی ہے آپ کی۔ عمر اس کی سرد مہری سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ میں نے سوچا مجھے بھی ملنا چاہیے آپ سے۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں علیزہ کا کزن ہوں۔ ذوالقرنین اب بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے علیزہ کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور حیران کن تھی کہ اسے اپنے اوسان پر قابو پانے میں وقت لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ ذوالقرنین نے بلا کر عمر سے کہا، اور اس کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے۔ کیا باتیں کرنی تھی؟ اس طرح کھڑے کھڑے کیا بات ہو سکتی ہے؟ آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی بھی خاص بات نہیں ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، کچھ کام ہے۔ یہ تو علیزہ نے اصرار کیا تو میں یہاں ملنے کے لیے آ گیا، ورنہ آج میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے عمر سے کہا، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ جلدی کریں۔ عمر نے ذوالقرنین کو خاصی گہری نظروں سے دیکھا۔ ذوالقرنین کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ علیزہ کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ یہ بات تو آپ علیزہ سے بھی پوچھ سکتے تھے، کیا صرف اتنی سی بات جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، جاننا تو کافی کچھ ہے، یہ تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ 1-1.5 ماہ ہوا ہے۔ ذوالقرنین اب پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ علیزہ بتا رہی تھی آپ دونوں کی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بار ذوالقرنین نے خاصے غور سے علیزہ اور عمر کو باری باری دیکھا۔ ہو سکتا ہے علیزہ نے ایسا محسوس کیا ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کی کافی دوستی ہے علیزہ کے ساتھ؟ ہاں ہے، اکثر ملتے رہتے ہیں۔ اکثر، یوں ہی کبھی کبھار ملتے ہیں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوستی کس سلسلے میں ہے؟ کیا آپ علیزہ کے بارے میں سیریس ہیں؟ سیریس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ واٹ؟ شادی؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ علیزہ کا رنگ فک ہو گیا۔ عمر اسی پرسکون انداز میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ذوالقرنین اب ناراض نظر آ رہا تھا۔
शादी नहीं करना चाह रहे तो फिर ये दोस्ती किस सिलसिले में है? हर दोस्ती शादी के लिए तो नहीं होती, तो फिर किस लिए होती है? वक्त गुजारने के लिए। यू कैन से दैट, जुल्करनैन ने कंधे उचकाते हुए खासी लापरवाही से कहा। तो फिर तुम्हें अलीज़ा से ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, या ये कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? मैंने अलीज़ा से ऐसा कुछ नहीं कहा, जुल्करनैन ने ढिठाई से झूठ बोला। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। आपने मुझसे कहा था जुल्करनैन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने अलीज़ा की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी से कहा। वह शौक के आलम में जुल्करनैन को देखने लगी। ये वो जुल्करनैन नहीं था जिसे वो पिछले 1 माह से जानती थी, वो बिल्कुल बदल चुका था। तो तुम्हें अलीज़ा में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही तुम उससे शादी का कोई इरादा रखते हो, तो फिर तुम मिलते किस मकसद के लिए हो? साथ क्यों ले लेके फिरते हो? मैं नहीं, वो मेरे साथ फिरती है, वो मिलने आती है मुझसे। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखता रहा। और जहाँ तक साथ फिरने का ताल्लुक है तो साथ तो तुम भी लिए फिरते हो इसे, तो फिर तुम क्यों नहीं शादी कर लेते इससे? अपनी मुसीबत दूसरों के सर पर क्यों डालना चाहते हो? जुल्करनैन के लहजे में तमस्कुर था। अलीज़ा खौफ के आलम में उसका चेहरा देखती रही। क्या जुल्करनैन मेरे बारे में इस तरह से सोचता है? मुझे नहीं पता ये तुमसे क्या कहती है या बताती रही है, मगर मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि इससे मोहब्बत या शादी का वादा करूँ। अगर इसे खुद ही मेरे बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर इस तरह अगर कोई कजन को पकड़ लाए इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए, तो मैं कम अज कम वो बंदा नहीं हूँ जो इस तरह फंस जाए। इस जैसी 1000 लड़कियों के साथ मेल जोल है मेरा, सबके साथ शादी कर लूँ क्या? उसके लहजे में तस्दीक थी। मुझे तुमसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई है जुल्करनैन, क्योंकि तुम मेरी तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा उतरे हो। मैं जितने घटिया आदमी से मिलने का सोच कर आया था, तुम मुझसे ज्यादा घटिया निकले हो। बहरहाल, अगर कभी अलीज़ा को फोन किया या उससे मिलने की कोशिश की तो मिलने से पहले वसीयत कराना, क्योंकि फिर तुम दोबारा वापस नहीं जा सकोगे। आओ अलीज़ा। उमर ने उसी तरह पुरसुकून अंदाज में उसे बात करने के बाद अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया और वापस मुड़ गया। अपने पीछे उसे जुल्करनैन का एक तंजिया कहकहा सुनाई दिया। वो उसे साथ लेकर पार्किंग में आ गया। गाड़ी में बैठकर उसने पहली बार अलीज़ा के चेहरे को गौर से देखा। वो बिल्कुल जर्द थी। उमर उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो जानता था उसे शौक लगा है। वो ये भी जानता था कि उसे जुल्करनैन के मुंह से कही जाने वाली किसी बात पर यकीन नहीं आया होगा, और उमर को इस वक्त उससे हमदर्दी भी महसूस हो रही थी। कार स्टार्ट करने के बजाय उसने अलीज़ा की तरफ मुड़कर उससे कहा, किसी भी चीज़ को सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में सब कुछ होता रहता है। एक्सपीरियंस इज़ दी अदर नेम ऑफ आवर मिस्टेक्स, सो टेक इट इज़ एन एक्सपीरियंस। हमारी गलतियों का दूसरा नाम तजर्बा है, इसे एक तजर्बा समझो। अलीज़ा ने उमर को देखने की कोशिश नहीं की। वो विंड स्क्रीन से बाहर पार्किंग में नजर आने वाली गाड़ियों को देखती रही। ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, ज़िंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, इस सबको भूल जाओ। वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा तो तुम्हें भी परेशान या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उमर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। वो अब भी खामोश थी। वो घर तक पूरा रास्ता उससे बातें करता रहा, उसे चेयर अप करने की कोशिश करता रहा। वो उसकी बातें सुनती रही, मगर उसने एक बार भी उसकी बातों के जवाब में कुछ कहा, ना ही उसे देखने की कोशिश की। वो बेतासुर चेहरे के साथ कार से बाहर देखती रही। उमर उसे घर पर ड्रॉप करने के बाद फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। उसे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी और फिर उसे कायदे-आज़म लाइब्रेरी जाना था। शॉपिंग के दौरान और बाद में लाइब्रेरी में भी उसके जहन पर अलीज़ा ही सवार रही थी। वो जानता था वो इतनी मैच्योर और समझदार नहीं थी कि हर चीज़ को फौरी तौर पर जहन से झटक देती। वो सोच रहा था वापसी पर वो रात को फिर कुछ वक्त उसके साथ गुजारेगा। चंद दिन लगेंगे मगर वो नॉर्मल हो जाएगी। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। शाम 7 बजे वो वापस घर आ गया। नानो लाउंज में फोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो उनके पास ही बैठ गया। वो फोन बंद करने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसने उनसे अलीज़ा के बारे में पूछा। वो तब से अपने कमरे में है जब से तुम छोड़कर गए हो, उन्होंने इतला दी। उमर भी उठकर अपने कमरे में आ गया। अगला 1.5 घंटा उसने अपने कमरे में अपने कुछ काम करते हुए गुजारा। 8:30 के करीब वो खाना खाने के लिए लाउंज में आया। खानसामा खाना लगा रहा था और नानो किचन में थी। ग्रैंडपा अभी तक वापस नहीं आए, उमर ने किचन में पानी पीते हुए कहा। वो आए थे लेकिन दोबारा चले गए। आज किसी डिनर में इनवाइटेड थे, नानो ने उसे बताया। वो उसके साथ बातें करता हुआ डाइनिंग रूम में चला आया। मुरीद, अलीज़ा को बुला लाओ। नानो ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए खानसामा। आज तो शाम की चाय भी नहीं ली उसने। उसकी तबीयत खराब थी कुछ, शायद इसलिए। उमर ने झूठ बोला। नानो ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, मुझे तो उसने नहीं बताया। बताती तो मैं उसे कोई मेडिसिन ही दे देती। वो परेशान नहीं करना चाह रही होगी, हो सकता है सो गई हो। उमर ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। चंद मिनट बाद खानसामा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। लीज़ा बीबी दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैंने बहुत दफ़ा दस्तक दी है, आवाज़ें भी दी हैं, उसने नानो से कहा। मैं खुद देखती हूँ, कहीं ज़्यादा ही तो तबीयत ख़राब नहीं हो गई। नानो उठकर चली गई। उमर वहीं बैठा सोचता रहा। उसने खाना शुरू नहीं किया। वो नानो की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगले कई मिनट नानो की वापसी नहीं हुई। फिर अचानक उसने घर के अंदर से दरवाज़ा बार बार बजाने की बुलंद आवाज़ और नानो को बुलंद आवाज़ में अलीज़ा का नाम पुकारते सुना। वो बेख्तियार डाइनिंग रूम से निकल आया। क्या बात है नानो? वो कॉरिडोर में आ गया। उमर, अलीज़ा दरवाज़ा नहीं खोल रही, ना ही अंदर से कोई जवाब दे रही है। इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोती।
नानो बेहद परेशान नजर आ रही थी। उमर की छठी हिस्स अचानक उसे किसी खतरे से खबरदार करने लगी थी। उसने आगे बढ़कर खुद दरवाजे को 2-3 बार बजाया और अलीजा का नाम पुकारा। अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई थी। इस कमरे की कोई चाबी है आपके पास? उमर ने मुड़कर नानो से कहा। चंद मिनट ले आई थी। उमर ने उनके हाथ से की रिंग ली और दरवाजा खोलने लगा। चंद सेकंड्स में लॉक खुल गया। उमर ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उमर ने बरक रफ्तारी से दीवार पर स्विच बोर्ड को ढूंढकर लाइट ऑन की। अलीजा बेड पर कंबल लिए लेटी हुई थी। उमर तेजी से उसकी तरफ गया और एक बार फिर उसका नाम पुकारा। वो अब भी वैसे ही बेहिस्सो हरकत थी। एक लम्हे के लिए उमर का सांस रुक गया। क्या हुआ है इसे? उसे अपनी पुश्त पर नानो की आवाज़ सुनाई दी। उमर ने अलीजा के माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म ठंडा था। ग्रैनी, ड्राइवर को कहें गाड़ी निकाले। प्लीज़ जल्दी करें, अलीजा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए उसने पीछे पलटकर नानो से कहा। नानो कुछ ना समझते हुए वापस पलट गई। उमर अब उसकी नब्ज़ ढूंढने में मसरूफ़ था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी तूफान की जद में आया हुआ था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे क्यों ख्याल नहीं आया कि वो ये सब कुछ भी कर सकती है। बाब 32। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? नानो ने आवाज़ पहचानते ही कहा था। अयाज हैदर उनका सबसे बड़ा बेटा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने आज इस तरह अचानक फ़ोन कैसे किया? नानो को एक हफ्ते में दूसरी बार अपने बेटे की कॉल आने पर हैरानी हुई। अयाज हैदर अगर बहुत जल्दी भी उन्हें कॉल करते तो हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करते थे और चंद दिन पहले वो उनसे बात कर चुकी थी। कोई काम है? नानो ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं उमर से बात करना चाहता हूँ। वीकेंड पर आपके पास आया होगा। नहीं, वो तो जब से सहाला गया है यहाँ वीकेंड गुजारने नहीं आता। मगर सहाला में तो वो नहीं है। वहीं से मुझे पता चला है कि वो वीकेंड पर लाहौर आया है। मैंने सोचा कि लाहौर में आप ही के पास आया होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुमने मोबाइल पर उससे कांटेक्ट नहीं किया? उसके मोबाइल का नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास हो तो मुझे लिखवा दे। हाँ, मेरे पास है। एक मिनट। नानो ने फ़ोन के पास मौजूद डायरी खोल ली। हाँ, ये नोट करो। उन्होंने उमर का नंबर उन्हें नोट करवाया। क्यों, कोई ज़रूरी बात करनी है उसे? नानो को तो जासूस हुआ। हाँ, खासी ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज़। अयाज हैदर ने मज़ीद कोई तफसील बताए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। नानो ने कुछ सोचते हुए फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद अयाज हैदर ने दोबारा कॉल की। इस बार भी फ़ोन नानो ने ही रिसीव किया। उमर का मोबाइल ऑफ है। मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कामयाब नहीं हो रहा। आप कुछ अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो लाहौर में कहाँ होगा? उन्होंने छूटते ही नानो से पूछा। नहीं, मैं तो नहीं जानती कि वो यहाँ किसके पास होगा और पता नहीं लाहौर में है भी या नहीं। हो सकता है जाफ़र के साथ हो। उसके साथ खासी दोस्ती है उसकी। नानो ने अपने दूसरे पोते का नाम लेते हुए कहा। नहीं, जाफ़र के साथ नहीं है। मैं उसके घर फ़ोन कर चुका हूँ। आप एक काम करें, उमर के बारे में पता करें। मैं कुछ देर बाद दोबारा आपको फ़ोन करता हूँ। अयाज हैदर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा। आखिर बात क्या है? इस तरह उमर को तलाश करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है तुम्हें? नानो को अब तशवीश होने लगी। मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ। अयाज हैदर ने बहुत उजलत में फ़ोन बंद किया था। नानो फ़ोन का रिसीवर हाथ में लिए परेशान हो रही थी। मुरीद, ज़रा अलीज़ा को बुला लाओ, उन्होंने खानसामा को आवाज़ देते हुए कहा। खानसामा सर हिलाते हुए अलीज़ा के कमरे की तरफ चला गया। अलीजा नाश्ता करके कुछ देर पहले ही अपने कमरे में वापस गई थी। छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर से जागी थी और अब नाश्ते के बाद एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बैठी ही थी जब मुरीद ने दरवाजा बजा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ, उसने नानो का पैगाम सुनने के बाद कहा। जिस वक्त वो लाउंज में आई, नानो फोन पर कोई नंबर डायल कर रही थी। नानो, आपने मुझे बुलाया है? उसने नानो से पूछा। हाँ, बैठो, उन्होंने नंबर डायल करते हुए कहा। अलीजा सोफे पर बैठ गई। कॉल मिल गई थी? नानो उमर के बारे में पूछ रही थी। अलीजा को हैरानी हुई। एकदम नानो को उमर में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? उसने सोचा। फोन बंद करके नानो ने बताया, अयाज का फोन आया था, वो उमर से कोई बात करना चाहता। उन्होंने अलीजा को बताना शुरू किया। मगर उमर यहाँ लाहौर में तो नहीं है, अलीजा ने कहा। वो जानता है, मगर वहाँ से उसे पता चला है कि उमर यहाँ वीकेंड पर लाहौर आया हुआ है। लेकिन उमर यहाँ तो नहीं आया। आपने अंकल अयाज को नहीं बताया? मैं ये भी बता चुकी हूँ। वो कह रहा था कि फिर मैं उसके तमाम फ्रेंड से रब्ता करके उसके बारे में मालूम करूँ। उसके फ्रेंड से रब्ता करने की क्या जरूरत है? उसके मोबाइल पर कॉल करें और उसे बता दें कि अंकल अयाज उससे बात करना चाह रहे हैं। अलीजा ने जैसे हल तजवीज़ किया। उसका मोबाइल ऑफ है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम बारी बारी उसके तमाम फ्रेंड्स और सारे रिश्तेदारों के घर फोन करना शुरू करो। नानो, कितना अकड़ लग रहा है कि मैं इस तरह फोन करके उमर के बारे में पूछूं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है जो गुम हो गया है। अयाज अंकल थोड़ा इंतजार कर ले, वो वीकेंड पर लाहौर आया है, कल वापस चला जाएगा, फिर वो इत्मीनान से उससे बात कर ले। इतनी अफरा तफरी की क्या जरूरत है? अयाज को कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना अयाज इस तरह आसमान सर पर ना उठाता। वो भी जानता है कि कल वो वापस सहाला चला जाएगा और वहाँ उसे रब्ता कर सकता है। फिर भी वो अगर उसे ढूंढने पर बाजिद है तो यकीनन कोई इमरजेंसी ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी फ्रेंड वगैरह के घर पर होगा। अगर वो आपके पास नहीं आया तो फिर यकीनन होटल में ठहरा होगा और यहाँ लाहौर में 2 ही तो होटल्स हैं जहाँ वो ठहरता है, इसलिए वहाँ फ़ोन करके पता कर लेते हैं। अलीजा ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा।
ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے ان ہوٹلز میں فون کرتے ہیں۔ علیزہ نے ڈائریکٹری پکڑی، اس سے نمبر دیکھ کر نمبر ملایا۔ پہلے ہوٹل میں ہی انہیں عمر کی موجودگی کا پتہ چل گیا، وہ اس وقت ہوٹل میں نہیں ہے۔ آپ میسج چھوڑ دیں، ان سے کہیں کہ اپنا موبائل آن کریں یا پھر اپنی گرینی کو فون کر لیں۔ علیزہ نے فون بند کر دیا۔ انکل ایاز اسے اتنی ایمرجنسی میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فون بند کرتے ہی علیزہ نے پاس بیٹھی نانو سے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، میں نے پوچھا بھی مگر ایاز نے بتایا نہیں، مگر بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ نانو نے بتایا ہو سکتا ہے عمر کا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہو انکل جہانگیر سے، اور انکل ایاز اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں۔ علیزہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو ایاز ہی بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نانو کچھ متفکر نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں وہی لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ فون کا ریسیور نانو نے اٹھایا۔ خلاف توقع دوسری طرف عمر تھا۔ تم نے موبائل آف کیوں کیا ہوا ہے؟ میں کب سے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نانو نے چھوڑتے ہی شکوہ کیا۔ آپ کا میسج ملتے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں۔ بائی دا وے، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں لاہور میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں؟ عمر نے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عمر تھا۔ ایاز نے فون کیا تھا، اسی نے بتایا کہ تم ویکنڈ پر لاہور آئے ہو، اور علیزہ نے اندازہ لگایا کہ تم ہوٹل میں ٹھہرے ہوگے۔ انکل ایاز نے میرے بارے میں آپ سے بات کی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم اس سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس نے مجھے فون کیا۔ اور تمہیں اس طرح ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس نہیں آ سکتے تھے؟ اور یہاں آنے کے بعد تم سے یہ بھی نہیں ہوا کہ مجھے فون ہی کر لیتے؟ نانو کو اپنی شکایتیں یاد آنے لگیں۔ انکل ایاز مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو بتایا؟ عمر نے ان کی شکایت سنی انسنی کر دی۔ پتہ نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ تم سے اس کا رابطہ کرواؤں۔ اب تم اسے فون کر لو یا پھر اپنا موبائل آن رکھو، وہ خود تمہیں فون کر لے گا۔ میں انہیں فون کر لیتا ہوں، لیکن کوئی اور آپ کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھے تو نہ میرا کانٹیکٹ نمبر دیں اور نہ ہی کسی کو یہ بتائیں کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں۔ عمر نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ مگر وہ کیوں؟ کیا بات ہے؟ نانو کچھ پریشان ہوئی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا گرینی کہ اس بار آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دوسری طرف عمر نے خاصی تلخی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ باب 33۔ ہم نے میدا واش کر دیا ہے، وہ اب ٹھیک ہے۔ 10-15 منٹ بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ اسے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی۔ نانو اور عمر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ نانو کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا، جبکہ عمر پہلے ہی کی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ علیزہ کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے عمر نے گاڑی میں نانو کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ علیزہ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کاغذ جو علیزہ کے بیڈ کے پاس جاتے ہی عمر کو نظر آیا تھا، اس نے نانو کو دکھا دیا، جس میں علیزہ نے اپنی خودکشی کے بارے میں لکھا تھا۔ نانو خط ہاتھ میں لیے پورا راستہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہیں۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے ہاسپٹل پہنچنے میں پوری طور پر علیزہ کے کیس کو ڈیل کیا تھا۔ فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس نے اس کیس کو پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کیا۔ اس نے کیا کھایا تھا؟ عمر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سلیپنگ پلز لی تھیں، آپ لوگ اسے بہت جلدی لے آئے، ابھی پوری طرح حل نہیں ہو سکی تھیں، اور اس پر زیادہ اثر اس لیے بھی نہیں ہوا کہ وہ یہ گولیاں لینے کی عادی لگتی ہے، ورنہ جتنی تعداد میں اس نے یہ گولیاں لی ہیں اس کی حالت خاصی خراب ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ لیکن علیزہ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے، پھر اس طرح؟ ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جواب طلب نظروں سے نانو کو دیکھا۔ کالج میں کچھ فرینڈ سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور شاید ڈپریشن میں یا غصے میں اس نے یہ کیا ہے۔ عمر نے ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ گرینی، کیا علیزہ سلیپنگ پلز لیتی ہے؟ یہ گولیاں تو نہیں، کوئی اور دوائی لیتی رہی ہے، مگر وہ بھی صرف تب جب سائیکیٹرسٹ کے سیشنز ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے پاس یہ پلز کہاں سے آئیں؟ میں تو خود حیران ہوں۔ کیا گرینڈ پا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں لیتے، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے خرید لی ہوں۔ نانو نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کب خریدی ہیں اس نے؟ یہی تو سمجھ نہیں پا رہا۔ پارک میں تو میں اس کو سیدھا گھر لایا ہوں، اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں گئی، پھر اس کے پاس یہ پلز کہاں سے آ گئیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ گرینڈ پا بھی نہیں لیتے؟ پھر؟ عمر الجھے ہوئے انداز میں کہتے کہتے یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ نانو نے کچھ حیران ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ یکدم بہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کے دوران کسی نے اس سے کچھ پوچھنے یا اس سے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نانا کو اگر اس سارے واقعے سے نانو بہت خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ شاید وہ دونوں علیزہ سے اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ نانو کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ پچھلے 1 ماہ سے اتنی کامیابی سے انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ علیزہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بہت شائع ہے، ریزرو، انٹروورٹ، آج تک وہ ایک سے دوسرا دوست نہیں بنا سکی، پھر بوائے فرینڈ، وہ بھی اس طرح چھپ کر۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو اس پر بہت محنت کی تھی، اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ شام کو اس کے گھر آنے کے بعد نانو عمر اور نانا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھیں۔ علیزہ اپنے کمرے میں تھی اور عمر کسی قسم کے تاثر کے بغیر نانا اور نانی کی گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ عمر نے سب کچھ ہم سے چھپایا۔ اگر یہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نانا نے اچانک عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کیا کرتے؟ عمر نے بڑی سنجیدگی سے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ کم از کم یہ سب کچھ نہ ہونے دیتا جو اب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا تو آپ اس کو ڈانٹتے، ذوالقرنین سے ملنے پر پابندی لگا دیتے، پھر کیا ہوتا؟ وہ پھر بھی یہی کرتی۔
तब की तब देखी जाती, मगर तुम्हारे इस तरह सब कुछ छुपाने से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इस बार नानो ने कहा। आप जो चाहे कह सकते हैं, मैं इस सिलसिले में तो अब कुछ कह ही नहीं सकता, मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने अलीज़ा और जुल्करनैन के अफेयर को आपसे छुपाया। मैंने अपने तौर पर मसला हल करने की कोशिश की और शायद मैंने ऐसा कर भी लिया था, मगर प्रॉब्लम सिर्फ अलीज़ा की सरकत से हुआ, वरना जुल्करनैन का मामला तो ख़त्म हो चुका था। उसने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। अब आप आगे के बारे में सोचें। अब आप उससे इस सारे मामले के बारे में क्या कहेंगे, ये तय करें। मैं जुल्करनैन की फैमिली से राब्ता कायम करूंगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो मैं जुल्करनैन के साथ अलीज़ा की शादी करा दूंगा। नाना ने एकदम जैसे अपना फैसला सुना दिया। वो लड़का अच्छा नहीं है ग्रैंडपा, वो साफ साफ इनकार कर गया है उससे शादी से। उमर कुछ बेचैन हुआ। उमर, तुम्हारे बात करने में और मेरे बात करने में बहुत फ़र्क होगा। हमारी फैमिली की अपनी एक हैसियत है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहें और वो बगैर सोचे समझे इनकार कर दें। जुल्करनैन शादी पर तैयार नहीं भी होगा तो उसके माँ बाप उसे तैयार कर लेंगे। वो अच्छा लड़का नहीं है ग्रैंडपा, कम अज़ कम मुझे उसने इम्प्रेस नहीं किया। अच्छा है या बुरा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर अलीज़ा को वो पसंद है तो वो उससे शादी करना चाहती है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सारी उम्र उसे पालने और बड़ा करने के बाद मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि वो इस तरह खुदकुशी कर ले। अगर वो उस शख्स के साथ खुश रह सकती है तो ठीक है, इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उसकी अच्छाई या बुराई का ताल्लुक है, मैं पता करवा लूँगा उसके बारे में। नाना वहीं बैठे बैठे फैसला करते जा रहे थे। नानो और उमर कुछ कहे बगैर खामोशी से उनका चेहरा देखते रहे। अगले चंद दिन भी उमर और अलीज़ा के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। अपने तहरीरी इम्तहान के रिजल्ट आने के बाद वो इस्लामाबाद चला गया। वहाँ से उसकी वापसी 2 हफ्ते के बाद हुई। आपने जुल्करनैन के सिलसिले में उससे बात की? रात के खाने पर डाइनिंग टेबल पर अलीज़ा से उसका सामना हुआ। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही और फिर खाने से फारिग होकर सबसे पहले टेबल से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद उमर ने नाना से पूछा। वो इस सिलसिले में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा जुल्करनैन के बारे में कुछ कहा तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर घर से भाग जाएगी। मैं तो खौफजदा हो गई। अलीज़ा कभी भी इतने बागियाना अंदाज में बात नहीं करती थी, मगर अब तो वो बिल्कुल बदल गई है। उसका दिल चाहे कॉलेज जाती है, दिल चाहे तो घर से बाहर नहीं निकलती। 2 दिन पहले जाकर सारे बाल कटवा आई। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार शहला आ चुकी है। उससे बात करने के बजाय उसे देखते ही कमरे में चली जाती है। वो दरवाज़ा बजाती रही। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो रोहासी होकर वापस गई। बाकी सबको तो छोड़ो, क्रिस्टी की सारी चीज़ें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दी। वो आगे पीछे फिरती रहती है, मगर मजाल है अलीज़ा उसे हाथ भी लगा जाए। घर में हो तो सारा दिन बुलंद आवाज़ में स्टेरियो ऑन रखती है। पहले कभी इसने ये भी नहीं किया। दिल चाहे तो खाना खाएगी, वरना 2 चम्मच लेकर उठ जाती है। और इनसे बात करूँ तो ये कहते हैं कि जो कुछ कर रही है करने दो, मैं कोई एतराज़ ना करूं। फिर इस तरह सब कुछ कितने दिन और कैसे चलेगा? उमर खामोशी से नानू की शिकायतें सुनता रहा, जबकि नाना बड़ी बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ रहे। ग्रैंडपा ने ठीक कहा, वो जो कर रही है उसे करने दें। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। उमर ने पानी पीते हुए कहा। मैंने इनसे कहा उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, दोबारा से सेशन करवाएं, उसका डिप्रेशन तो कम हो, मगर ये उस पर भी तैयार नहीं। नानो को एक बार फिर उससे शिकायत हो रही थी। मैं उसकी मर्जी के बगैर उसे साइकेट्रिस्ट के पास कैसे ले जा सकता हूँ? और उसने साफ साफ कह दिया है कि वो अब किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो पागल नहीं है और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। नाना ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मेरी बात करने का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। मुझे तो पहले ही शर्मिंदगी है, ना मैं जुल्करनैन से बात करता और ना ये सब होता। वो खुश रहती। उमर को वाकई पछतावा था। फिर भी तुम उससे बात करो, इस तरह उसको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। परसों सिकंदर का फ़ोन आया था, उससे बात करने से इनकार कर दिया। 7-8 दिन पहले समीना का फ़ोन आया था, तब भी उसने यही किया। मैंने समझाने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही मैं किसी से फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई टेलीफोनिक रिश्ता नहीं चाहिए। उन्होंने रंजीदा लहजे में कहा। मैंने इतने साल उसकी तरबियत पर लगा दी और अब ये सब कर रही है। मेरी सारी मेहनत इसने ज़ाया कर दी। ग्रैनी, आपने उसकी तरबियत नहीं की, आपने उसकी शख्सियत बनने ही नहीं दी। नानो ने उमर की बात काट दी। मैंने उसे हर चीज़ दी। तरबियत सहूलतों और चीज़ों को नहीं कहते, उसने मुस्तहकम आवाज़ में कहा। आपने उसको सिर्फ पाला। पालने में और तरबियत करने में फ़र्क होता है। आपने उसकी तरबियत की होती तो वो जुल्करनैन के साथ अफेयर ना चलाती, या ऐसी गलती कर भी लेती तो इस तरह खुदकुशी की कोशिश ना करती। मैं नहीं मानता कि उसको जुल्करनैन से मोहब्बत हुई है। जुल्करनैन की जगह आज कोई दूसरा बंदा आकर वही सब कुछ उससे कहना शुरू कर दे जो जुल्करनैन कहता था, वो उसके साथ भी उसी तरह आंखें बंद करके चल पड़ेगी। उसको जहाँ से तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी, क्योंकि उसको ये चीज़ें आपसे या अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हैं। इस खानदान में और भी बहुत से उस जैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स में अलहदगी हो चुकी है। किसी ने भी वैसे प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए जैसे अलीज़ा ने किए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बाकी सारे बच्चे अलहदगी की सूरत में पेरेंट्स में से किसी एक के पास रहते हैं और दूसरे से मिलते रहे हैं। अलीज़ा की तरह किसी को नाना नानों के पास नहीं छोड़ा गया। तुम भी तो हो उमर, तुम तो बोर्डिंग में रहे हो। जहांगीर ने मुस्तकिल तुम्हें अपने पास नहीं रखा और ज़ारा से भी मिलने नहीं दिया, फिर भी तुमने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए। उमर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी।
मैं कितना नॉर्मल हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मर्द की ज़िंदगी का दायरा औरत की ज़िंदगी के दायरे से मुख्तलिफ होता है। मेरी सारी ज़िंदगी घर के बाहर गुजरती है। मेरे पास बहुत सी मसरूफियात हैं, बहुत सी तफरीहात हैं, फिर एक करियर है, और फिर मैं 26 साल का हूँ। मुझे इस टीन एजर से तो कंपेयर नहीं कर सकते जिसकी ज़िंदगी के दायरे में एक दोस्त, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक बिल्ली और चंद ख्वाब हैं। उसके पेरेंट्स की सेपरेशन की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर उसने कोई दुख उठाया है तो मेरी वजह से नहीं किया। मैं उसे जो दे सकती थी मैंने दिया। अब 24 घंटे तो मैं उसको गोद में लेके नहीं बैठ सकती, और फिर अब वो बच्ची नहीं है, मैच्योर हो रही है। अपनी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को समझे, हालात के साथ एडजस्ट करना सीखे। तैराकी सिखाए बगैर आप किसी को इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए समंदर में धकेल देंगी तो उसके साथ वही होगा जो अलीज़ा के साथ हो रहा है। उस पर तरस खाने की बजाय उसके साथ वक्त गुजारें। वो पास बैठने को तैयार तो हो। उमर खाना ख़त्म कर चुका था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसको कुछ अरसे के लिए ले जाएं। कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, किसी हिल स्टेशन, या उससे पूछ लें जहाँ वो जाना चाहे। वो टेबल से उठ गया। अलीज़ा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके वो जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रही थी। उमर को देखकर कुछ गड़बड़ाई। कैसी हो अलीज़ा? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने झूलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर जवाबन कोई मुस्कुराहट नमूदार ना हुई। उसने उमर के सवाल का जवाब दिया। वो सिर्फ बेतासुर चेहरे के साथ उमर को देखती रही, जो इत्मीनान से उसकी कुर्सी के करीब बेड पर बैठ गया। आप मुझसे मेरा हाल पूछने नहीं आए, कुछ और पूछने आए हैं। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई कुछ और पूछने आया हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या पूछने आए हैं। उसने अपनी गोद में रखा हुआ हेयर बैंड अपने बालों में लगाते हुए कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो क्या पूछने आया हूँ मैं? उमर ने बड़े इत्मीनान से पूछा। आप मुझसे कहेंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? नहीं, मैं ये पूछने नहीं आया। अलीज़ा की आंखों में बेयकीनी की लहर आई। फिर आप मुझसे ये कहने आए होंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं ये कहने नहीं आया। फिर नानू ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। आप मुझे समझाने आए होंगे कि मैं अपना रवैया ठीक कर लूँ। सॉरी अलीज़ा, तुम्हारा अंदाज़ा इस बार भी गलत है। मैं ये भी कहने नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम कब से मेरे कमरे से स्लीपिंग पिल्स लेती आ रही हो। उमर ने देखा कि अलीज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। और जाहिर है तुम मेरे सामान की अच्छी खासी जांच पड़ताल करती रही हो। अलीज़ा ने कुछ कहना चाहा, उमर ने उसे टोक दिया। नहीं, कम अज़ कम मेरे साथ झूठ नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे में पिल्स लेती रही हो और तुमने मेरे कमरे से ही पिल्स लेकर खुदकुशी की कोशिश की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैंने आपके कमरे से पिल्स ली, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसलिए ली। और इसमें बुरी बात क्या है? आप भी तो ये गोलियाँ खाते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए बोल नहीं सका। तुम्हारी और मेरी उम्र में बड़ा फ़र्क है, और मैंने इसे आदत नहीं बनाया। मगर आप लेते तो हैं ना? उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन मैं मरने के लिए तो नहीं लेता। इस बार वो चुप हो गई। जुल्करनैन ने घर जाकर एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा और तुम उसके लिए मरने की कोशिश। अलीज़ा ने तेज़ आवाज़ में उसकी बात काट दी। आप उसके बारे में बात ना करें। क्यों? क्या अब तुम उससे नफरत करने लगी हो? उमर ने जैसे मजाक उड़ाया। मगर तुम्हें उससे नफरत कभी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, ग्रैंडपा कह रहे हैं ना कि तुम चाहो तो वो तुमसे उसकी शादी करवा देते हैं। फिर तुम उनका प्रपोजल कबूल कर लो। मुझे जुल्करनैन की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझ में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो शख्स मेरी इंसल्ट करे मैं उससे शादी ना करूं। और उसने मेरी इंसल्ट की है। उसकी आंखों में एकदम आंसू उमड़ आए। उसने चेहरा झुका लिया। तो फिर ऐसे शख्स के लिए इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? उसने जवाब देने के बजाय अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उमर ने अपना सवाल दोहराया। तो फिर ऐसे शख्स के लिए इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? उसने जवाब देने के बजाय अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उमर ने अपना सवाल दोहराया। वो अब रो रही थी। लोग इतने झूठे होते हैं, इतने मक्कार होते हैं कि मैं तो उनके साथ रह नहीं सकती। लोग अपने चेहरे पर इतने मास्क चढ़ाकर फिरते हैं कि मैं तो किसी को पहचान ही नहीं सकती। हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का भी। मैं तो लोगों को नहीं समझ सकती। उसने मुझसे बहुत दफ़ा मोहब्बत का इजहार किया। उसने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। और उस दिन आपके सामने उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कहा ही नहीं। ना ही उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, ना उसने मुझसे कभी शादी का वादा किया है। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके लिए सब कुछ टाइम पास था, मगर मेरे लिए तो टाइम पास नहीं था। मैं तो अब किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। ना नाना का, ना नानू का, ना ही आपका। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे सब कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। मेरा दिल चाहता है दुनिया का एक दरवाज़ा हो जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। अगर अकेले रहना है तो फिर मैं वहाँ जाकर रहूँ। और तुमने वो दरवाज़ा स्लीपिंग पिल्स खाकर ढूंढने की कोशिश की। अलीज़ा ने एकदम सर उठाकर उमर को देखा। पता नहीं मैंने क्या किया। आप उस दिन की बात ना करें। आप कुछ भी ना कहें, मुझे बार बार सब कुछ याद ना दिलाएं। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, जुल्करनैन को भी। अब तुम बताओ आगे क्या करना है। वो ही जॉब कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से ग्रैनी और ग्रैंडपा कितने परेशान हैं।
मेरी समझ में नहीं आता हर एक मेरी वजह से परेशान क्यों होता है। वो दोनों अपने बेटों और बेटियों की वजह से परेशान क्यों नहीं होते। जो कुछ आपके पापा ने किया उस पर वो परेशान क्यों नहीं होते। वो बात करते करते चुप हो गई। उमर का लहजा एक लम्हे के लिए बदला, फिर वो उसे उसी तरह देखता रहा। कहती रहो, खामोश क्यों हो गई। उसने बड़े नौक से कहा, आप नाना और नानू से कहें वो मेरे बारे में परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा। क्रिस्टी को क्यों छोड़ दिया तुमने, और शहला से क्यों नहीं मिल रही। मुझे वो दोनों अच्छी नहीं लगती। फिर एक दूसरी बिल्ली और दूसरी फ्रेंड बना लो। अलीसा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। जिस चीज़ से दिल भर जाए उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। उमर ने बात जारी रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे जुल्करनैन ने रिप्लेस कर दिया। उमर चुप हो गया। मैं जुल्करनैन की बात नहीं कर रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। वो उसी तरह सर उठाकर उससे पूछ रही थी। नहीं, मैं नहीं कर पाता, उमर ने एतराफ़ किया। मगर मैं सीख जाऊंगा। जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ वो प्रोफेशन मुझे सब कुछ सिखा देगा। मगर मैं कभी किसी चीज़ को रिप्लेस करना नहीं सीख सकती। फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल है। वो अजीब से अंदाज में हंसी। मैं चाहता हूँ अलीज़ा, तुम खुद को इस तरह ज़ाया मत करो। मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। उसने बड़ी संजीदगी से अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? पता नहीं, मगर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप वाकई परवाह करते हैं मेरी? अलीज़ा ने पूछा। क्या तुम्हें अब भी मुझसे ये पूछने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल था तुम ये जानती होगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों को नहीं समझ सकती। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। मुझे उन लोगों में शामिल मत करो। तुम्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए। अलीज़ा सिकंदर को उमर जहांगीर कभी धोखा नहीं दे सकता। अलीज़ा बहुत गौर से उसका चेहरा देखती रही। वो भी उसी तरह उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए हुए था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने सर उठाकर उमर से पूछा। बाब 34। हेलो, मैं उमर बोल रहा हूँ। हेलो उमर, कहाँ थे तुम? सुबह से कितनी बार कॉल्स कर चुका हूँ, मगर तुमने मोबाइल ऑफ किया हुआ था। हो कहाँ तुम? अयाज हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। यही हूँ मैं, लाहौर में। गरैनी ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे थे। किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं मुझसे? तुमने आज के न्यूज़पेपर देखे हैं? देख चुका हूँ, उमर ने उसी बेतासुर अंदाज में कहा। अपने बारे में खबर देखी है? हाँ, मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? हमदर्दी करना चाहते हैं? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों तक तुम्हें सस्पेंड करके तुम्हारी शुरू होने वाली है। अयाज हैदर ने जैसे इंकशाफ किया। थैंक यू। और कुछ? तुम यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कुछ करना है मैं यहीं रहकर करूँगा। क्या करोगे तुम? वही जो पापा ने किया। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस में ये सब कुछ शाया करवाया। मैं भी उनके खिलाफ प्रेस को वो सारे पेपर्स दूंगा जो मेरे पास हैं। बेवकूफ़ी मत करो। मैं जहांगीर से बात कर चुका हूँ। प्रेस ने तुम्हारे और चंद दूसरे ऑफिसर के बारे में जो कुछ शाया किया उसमें जहांगीर का हाथ नहीं है। वो तो खुद न्यूज़पेपर्स देखकर हैरान हुआ है। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुका था कि तुम अगर उस प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे लिए सर्विस में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्यों करवा रहा है। आप सिर्फ पापा को ये इतला दे दें कि वो कल का न्यूज़पेपर भी ज़रूर पढ़ें। उन्हें खबरों में रहने की खासी आदत है। कल उनके बारे में भी कुछ खबरें लगेंगी, हो सकता है काफ़ी पसंद आए उन्हें। उमर का लहजा तल्ख था। उमर, तुम कुछ नहीं करोगे? यार क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ हो इस्लामाबाद, मैं तुम्हारी और जहांगीर की बात करवाता हूँ। कोई हल सोचते हैं। अयाज हैदर ने मुसालिहाना अंदाज में भतीजे से कहा। मैं अब उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब बातों का वक्त ही नहीं रहा। वो मेरे लिए हर रास्ता बंद करते जा रहे हैं। इसमें जहांगीर का क्या कसूर है? तुमने अमेरिका में जो कुछ किया, एजेंसीज के आदमियों ने उसके बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी। अब अगर उस रिपोर्ट में से कुछ एक्सर्प्ट्स प्रेस के हाथ लग गए और प्रेस ने शाया कर दिया तो इसमें जहांगीर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से साबित होती है? और इंक्वायरी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी प्रेस ने शुरू करवाई है। उमर, तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस ऑफेंस हैं। ट्रीजन केस बनता है। अब जाहिर है ऐसी रिपोर्ट्स पर गवर्नमेंट इंक्वायरी तो करवाएगी। मैंने अमेरिका में जो कुछ पापा के लिए किया और पापा के कहने पर किया, ट्रीजन केस पापा के खिलाफ बनना चाहिए। ये इंक्वायरी भी उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। एजेंसीज के लोग इतने होशियार हैं कि मुझे उन्होंने फ़ौरन ट्रेस आउट कर लिया। और पापा के बारे में वो एक लफ्ज़ तक नहीं रिपोर्ट कर सके। और इस मुल्क में प्रेस तक सरकारी अफसरों के बारे में वही कुछ आता है जो गवर्नमेंट पहुँचाना चाहती है, वरना कम अज़ कम एजेंसीज की रिपोर्ट्स इस तरह लीक आउट नहीं होती। उमर का इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। देखो उमर, उमर ने अयाज हैदर की बात काट दी। मैंने अगर एम्बेसी में फाइल्स और रिपोर्ट्स की कॉपीज़ किसी को पहुंचाई हैं तो पापा के कहने पर की हैं। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका बॉस आपके पास मौजूद फाइल्स किसी को देने के लिए कहे और वो बॉस आपका बाप भी हो जिसने सारे रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे को वहाँ पोस्ट ही इसलिए करवाया हो। उमर, मोबाइल पर इस तरह की बातें मत करो। हो सकता है ये कहीं सब सुना जा रहा हो। अयाज हैदर ने उसे कहा। आई डोंट केयर। सुना जा रहा है तो सुना जाए। वो मेरा सर्विस रिकॉर्ड ख़राब करने पर तुले हैं।
और मैं उनके बारे में एक लफ्ज़ भी ना कहूँ। पहले भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और अब फिर वो यही करना चाह रहे हैं। तुम्हें ख्वामख्वाह गलतफहमी हो गई है। वो तुम्हें क्यों इस्तेमाल करेगा? वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट जाने वाली है और उन्होंने उस सियासतदान को मेरे बारे में कुछ भी शाया करने से नहीं रोका, क्योंकि जब चंद माह बाद गवर्नमेंट जाएगी तो वो अबूरी हुकूमत में मेरे केस को इस्तेमाल करके फायदा उठाएंगे, ये जाहिर करते हुए कि वो और उनका बेटा इन ब्यूरोक्रेट्स में से हैं जो इस हुकूमत के जेर अताब हैं। बाद में अगली गवर्नमेंट से वो अच्छी तरह पोस्टिंग ले जाएंगे मगर मेरा सर्विस रिकॉर्ड तो खराब हो जाएगा। उमर जहांगीर ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। इस बार अयाज हैदर का लहजा पहले से मोहतात था। ओह रियली? तो फिर उनसे कहें कि मैं अब इस मिनिस्टर की बेटी से शादी पर तैयार हूँ, वो जब चाहे मेरी शादी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से अयाज हैदर ने गहरा सांस लिया। आप खामोश क्यों हो गए हैं? उमर ने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम अहमकाना बात कर रहे हो और अहमकाना बातों का कोई जवाब नहीं होता। अंकल, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि ऐसी चालों को ना समझूं। पापा से कहें अब जोड़े रिश्तेदारी उस मिनिस्टर से। अब वो किसी कीमत पर मेरी शादी उस शख्स की बेटी से नहीं होने देंगे, क्योंकि चंद माह तक गवर्नमेंट चली जाएगी और अगली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के तमाम रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट्स पर इंक्वायरीज लाएगी, SOD बनाएगी या फिर वो पोस्टिंग्स देगी जो बेकार हैं। तुम इम्कानात की बात कर रहे हो। अयाज हैदर का लहजा बहुत ठंडा था। मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। अगर ये इम्कान है तो पापा इस्लामाबाद में जमकर क्यों बैठे हुए हैं? अगली पोस्टिंग लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? मेडिकल लीव को क्यों बढ़ाया है उन्होंने, जबकि वो बिल्कुल ठीक हैं? और आप इंग्लैंड से इस्लामाबाद क्यों आ गए हैं? उमर, मैं तुम्हारे और जहांगीर के मसले को हल करवाना चाहता हूँ। मैं वाकई ऐसा चाहता हूँ। तुम यहाँ आओ, सामने बैठकर बात करते हैं। अयाज हैदर ने बहुत पुरसुकून अंदाज में बात का मौजू तब्दील कर दिया। नहीं, मैंने अब कोई आमना सामना नहीं करना। अगर वो सब कुछ प्रेस में ले गए हैं तो मैं भी सब कुछ प्रेस में ले जाऊंगा, और मेरे पास उनके बारे में जो कुछ है वो एक बार प्रेस में आ गया तो कोई गवर्नमेंट उन्हें सर्विस में नहीं रख सकेगी। वो अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे या किसी दूसरे मुल्क में फ़रार होकर। तुम जानते हो इससे क्या होगा? हमारी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी हमारी। जहांगीर का करियर ख़त्म होगा तो तुम्हारा भी ख़त्म हो जाएगा। अयाज हैदर पहली बार बुलंद आवाज़ में बोले। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना फैमिली की ना अपने करियर की। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो जाए, बल्कि सब कुछ ख़त्म हो जाने दें। उमर, तुम जज्बाती हो रहे हो। ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। अगर प्रेस में तुम्हारे बारे में कुछ आ भी गया तो उसको कवर अप किया जा सकता है। तुम अकेले ऑफिसर नहीं हो, और भी ऑफिसर्स का नाम आया है। उनकी फैमिलीज भी हाथ पांव मारेंगी। उमर, तुम जज्बाती हो रहे हो। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। अगर प्रेस में तुम्हारे बारे में कुछ आ भी गया है तो उसको कवर अप किया जा सकता है। तुम अकेले ऑफिसर नहीं हो, और भी ऑफिसर्स का नाम आया है। उनकी फैमिलीज भी हाथ पांव मारेंगी। हम किसी न किसी तरह इंक्वायरी को डिले करवा लेंगे। चंद माह तक वैसे भी सियासी सेटअप तब्दील होने वाला है। एक बार वो मिनिस्टर वहां से हट गया तो कौन दोबारा इंक्वायरी शुरू करवाएगा? फिर अगर उसने जल्दी इंक्वायरी करवाना भी चाही तो हम देख लेंगे कि इंक्वायरी बोर्ड में कौन से मेंबर्स हैं, उनके साथ डील भी की जा सकती है। लेकिन मेरे सर्विस रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाएगा। उसके बारे में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर ठीक है, जब पापा के बारे में प्रेस कुछ शाया करे तो आप बिल्कुल उसी तरीके से सारे मामले करें जिस तरह आप मेरे मामले को हैंडल करने का कह रहे हैं। वो अभी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं भी उनके साथ वही करूँगा। कम अज़ कम अब वो मुझे इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मैंने तुम्हें बताया है कि जहांगीर ने ये सब नहीं करवाया, मगर उन्होंने ये सब होने से रोका भी नहीं। अंकल, आप अपने बेटे के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेस तक आने देते, ख़ास तौर पर तब जब वो आपके कहने पर ही ये सब कुछ करता रहा हो? अयाज हैदर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके। कोई अपने घर के कुत्ते के साथ भी वो नहीं करता जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। मुझे पूरी तरह दलदल में फंसा दिया है। मेरे बारे में जो इल्जामात आए हैं उसके बाद तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। सिर्फ इस गंदगी की वजह से फॉरेन सर्विस छोड़कर आया था कि ना मैं वहाँ हूँगा, ना ही मुझे इस तरह के काम करना पड़ेंगे। और पापा मुझे यहाँ भी रहने नहीं दे रहे। अगर वो रिपोर्ट उस शख्स ने प्रेस तक पहुँचाई है तब भी क्यों नहीं उन्होंने रोका उसे। मगर जहाँ जहांगीर माज की अपनी ज़ात आ जाए वहाँ तो उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता, हत्ता कि अपनी औलाद भी। अगर ये मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे तो फिर मैं भी इनका लिहाज नहीं करूँगा। इनफ इज इनफ। नाउ आई विल पे हिम इन द सेम क्वीन। उसने फोन बंद कर दिया। अब मैं उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा। अयाज हैदर ने परेशानी के आलम में उसका नंबर दोबारा मिलाना शुरू कर दिया था। मोबाइल ऑफ कर दिया गया था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने जहांगीर माज का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। पता नहीं अयाज को क्या बात करनी है उमर से। कह रहा था मुझे फोन करके बता देगा, मगर अभी तक फोन भी तो नहीं किया उसने। लंच करते हुए नानो मुसलसल उमर के बारे में परेशान हो रही थी। अलीजा उनकी बड़बड़ाहट सुनते हुए खामोशी से खा रही थी। तुम जरा फोन करो उमर को, फिर आखिर नानो ने उससे कहा। फोन करने से क्या होगा? मैं बात तो करूँ ना उससे, पता तो चले कि अयाज को उससे क्या बात करनी थी।
नानो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल ने काम के हवाले से ही कोई बात करनी होगी। हमें बताने वाली बात होती तो अंकल आपको बता देते, या फिर उमर ही आपको बता देता। अलीजा अब भी मुतमईन थी। नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे लगता है उसका फिर जहांगीर के साथ कोई झगड़ा हो गया है। वो कुछ कह भी रहा था। तो ये कौन सी नई बात है? चंद माह पहले भी तो यही झगड़ा हुआ था। अंकल जहांगीर और उसके दरमियान तो हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं। अलीजा ने नानो को मुतमईन करने की कोशिश की। फिर भी कुछ पता तो चलना चाहिए। तुम उमर को फोन करो, नानो ने इसरार किया। खाना तो खा लेने दें, फिर कर देती हूँ। अलीजा को उनके इसरार से कुछ उलझन हुई। खाना खाने के बाद अलीजा ने उमर के मोबाइल का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ है, उसने नानो को इतला दी। तुम होटल में फोन करो, नानो ने हदायत दी। अलीजा ने होटल का नंबर डायल किया। कुछ वक्त के बाद होटल के एक्सचेंज के थ्रू उमर से उसका राब्ता हो गया था। नानो आपसे बात करना चाह रही हैं। उसने उमर की आवाज सुनते ही रिसीवर नानो को थमा दिया। हेलो ग्रैनी, अब क्या मसला है? वो उकताया हुआ लगा। तुमने मुझे दोबारा फोन नहीं किया। अयाज से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। क्या कहा उसने तुमसे? आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? उमर ने जवाबन सवाल पूछा। हाँ, देखा है। फिर भी आप पूछ रही हैं? क्या मतलब? फॉरेन सर्विस के कुछ ऑफिसर्स के बारे में फ्रंट पेज पे एक हेडलाइन है, उसे जरा गौर से पढ़ लें। उसमें मेरा नाम नहीं दिया गया, मगर मेरे ओहदे और पोस्टिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अंकल अयाज इस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। मेरे खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है। चंद दिनों तक मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसने गहरी सांस लेकर बताया। नानो एकदम परेशान हो गई। फिर क्या होगा? तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं? ग्रैनी, इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछें। मैं रात को आपकी तरफ आऊंगा, खाना आपके साथ खाऊंगा, तब आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगी। उमर ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। उमर को मुअत्तल कर रहे हैं? अलीजा ने नानो के फोन रखते ही उनसे पूछा। हाँ, तुम जरा आज का न्यूज़पेपर लाओ। नानो बेहद फिक्रमंद नजर आने लगी थी। अलीजा अखबार लेकर उनके पास आ गई। वो भी यकदम संजीदा नजर आने लगी थी। नानो ने अखबार अपने सामने फैला लिया। अलीजा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। खासी देर बाद उन्होंने सर उठाया। न्यूज़पेपर्स में उमर के बारे में कोई खबर है? हाँ, नानो ने मजीद कुछ कहे बगैर वो सफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उमर ने ये सब कुछ क्यों किया? वो जैसे हैरत से चीख उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उमर भी ये सब कर सकता है। खबर पढ़कर उसके चेहरे पर बेयकीनी उभर आई। रात को उमर के आने तक वो दोनों फिक्रमंदी के आलम में वहां बैठी उसी के बारे में बात करती रही। मगर जब वो आया तो उसके चेहरे के तासुरात ने उन दोनों को हैरान किया। खिलाफ तवक्का वो बहुत पुरसकून और मुतमईन नजर आ रहा था। खाने की मेज पर वो नानो से मुख्तलिफ डिशेस को डिस्कस करता रहा। अलीजा उसके चेहरे को गौर से देखती रही। वो हमेशा की तरह बड़े इत्मीनान से अपने आप को छुपाए हुए था। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो किस किस्म की मुश्किल या परेशानी से दो चार था। खाने के बाद वो तीनों कॉफी पीने लाउंज में बैठ गए और तब नानो ने खुद बात शुरू की। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आपके बेटे के लिए किया, उसने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर कहा। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ इस वक्त कॉफी के सिप लेते हुए ये मशवरा देना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर जब आप मगर जब आप टीवी लाउंज के बजाय एम्बेसी के ऑफिस में बैठे हो और आपका बॉस, जो आपका बाप भी हो, वो आपसे ये कहे कि इस फाइल की एक कॉपी किसी ऐसे शख्स को दे दो जो सिक्योरिटी रिस्क हो, तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप किसी तरह का एतराज कर सकते हैं। ये कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, या अपनी हुब्बुल वतनी के बारे में कोई तकरीर शुरू कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप उस ऑफिस में कितनी देर और दिन बैठ सकते हैं जहाँ के चपरासी से लेकर एम्बेसडर तक सब एक जैसे हों। जहांगीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नानो ने अफसुर्दगी से कहा। ये जुमला आपने 25 साल देर से कहा। 25 साल पहले आप अपने बेटे को ये बात कह देती तो शायद वो चंद लम्हे सोचता कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मगर अब 25 साल बाद उसके लिए ये एक बेमायनी जुमला है। इन फाइल्स के बदले मेरे बाप के पास इतने डॉलर्स आ गए हैं कि उनसे खरीदी जाने वाली चीजें किसी भी रिश्ते से ज्यादा महंगी होती हैं। अलीजा को अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी बातें ज्यादा तल्ख थी या वो कॉफी जो वो अपने अंदर उंडेल रही थी। अब क्या होगा? नानो ने उसकी बात के जवाब में कहा। पता नहीं, उमर ने कंधे उचकाए। बस मेरे पास पापा के खिलाफ जो भी पेपर्स हैं, मैं भी उन्हें प्रेस के जरिए सामने ला रहा हूँ। पापा ने मुझे डुबोने की कोशिश की है, मैं उन्हें डुबोने की कोशिश करूंगा। उसके लहजे में अजीब सर्दमोहरी थी। टीवी पर 9 बजे का न्यूज बुलेटिन शुरू हो चुका था। वो अब कॉफी पीने के साथ खबरों की तरफ मुतवज्जा था। और तुम्हारा क्या होगा? नानो उसके लिए फिक्रमंद थी। मेरा? वो हंसा। कुछ भी नहीं, चंद हफ्ते या महीने मुअत्तल रहूंगा, फिर दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी। अलबत्ता रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हाँ, मगर पापा को खासे फवाइद हासिल होंगे इन खबरों और मेरी सस्पेंशन से। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत आदमी है। ट्रम्प कार्ड हमेशा उन्हीं के हाथ रहता है। वो टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए कह रहा था।
आज कराची में कुछ नामालूम हमलावरों ने मारूफ सहाफी शहबाज मुनीर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने ऑफिस में थे। मकतूल एक सफ़े अव्वल के इंग्लिश अखबार के एडिटर थे। हमलावर जाने से पहले उनके ऑफिस में मौजूद तमाम दस्तावेजात को आग लगा गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वजीर आला और गवर्नर ने उस हादसे पर दिली अफसोस। एक तो ये रोज रोज के कत्ल, पता नहीं हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को ठीक क्यों नहीं कर पाती। नानों की बड़बड़ाहट ने अलीजा की सोचों का तसलसल तोड़ दिया। टीवी पर अब न्यूज कास्टर कोई और खबर पढ़ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है उमर? अलीजा ने नानू की आवाज पर चौंक कर उमर को देखा। वो होंठ भींचे जर्द चेहरे के साथ सोफे के कुछ से टेक लगाए हुए था। बाप 35। उमर उसका चेहरा देखने लगा। आप करेंगे मुझसे शादी? अलीजा का अंदाज इस बार पहले से भी ज्यादा अखड़ था। उमर यकदम हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। और आपने ऐसा सोचा भी क्यों कि मैं आपसे इस बारे में मजाक करूंगी? उमर की मुस्कुराहट गायब हो गई। बताएं, आप करेंगे मुझसे शादी? वो उसी संजीदगी के साथ पूछ रही थी। आप खामोश क्यों हैं? हर सवाल का जवाब जरूरी होता है क्या? हाँ, जरूरी होता है। कम अज कम इस सवाल का जवाब जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उमर उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने मुस्तहकम अंदाज में कहा, नहीं। अलीजा की रंगत मुतगैयर हुई, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। मैं जानती थी आपका जवाब यही होगा। मैं इतने हफ्तों से यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जुल्करनैन ने आखिर मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। कोई तो ऐसी खामी होगी मुझ में कि उसने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा, मुझसे मुस्तकिल ताल्लुक नहीं जोड़ा। और मैं खुदकुशी सोचे समझे बगैर नहीं करना चाह रही। मैंने सब कुछ सोच समझ कर वो पिल्स ली थी। आप जब से यहाँ आए हैं मुझे यही बताते रहते थे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आपको पता है, आप में और जुल्करनैन में ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी मुझसे यही सब कहता रहता था, बस आपने उसकी तरह मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया। उसने कहा। अलीजा, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। आप मुझे बात करने दें, रोके नहीं। मुझ में ऐसी कोई खामी तो होगी जिसको कवर करने के लिए आप जुल्करनैन आप और जुल्करनैन मेरी आंखों में सब अच्छा है कि पट्टी बांधते रहे। ऐसा नहीं है, उमर ने मध्यम आवाज में कहा। ऐसा है, मुझ में कुछ तो एबनॉर्मल है, कोई कमी तो है। तुम में टीन एज इम्पल्सिवनेस के अलावा और कोई खामी नहीं है। उमर ने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा। लोगों को मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है। वो उमर की बात सुने बगैर बोलती चली गई। चाहे वो आप हो या फिर नानो नाना, हर एक ने जिंदगी का मकसद अलीजा पर तबसरा करना बना लिया है। उमर कुछ कहते कहते रुक गया। मैं तंग आ गई हूँ इस सबसे, हर चीज की एक हद होती है। तुम्हें हम लोगों से शिकायतें हैं? उमर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। पता नहीं, वो हद दर्जा बेजार नजर आई। तुम कुछ अर्सा के लिए अपने पेरेंट्स में से किसी के पास चली जाओ। क्यों जाऊं? वो एकदम हत्थे से उकड़ गई। तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, खुद को बेहतर महसूस करोगी तुम। पेरेंट्स के पास जाकर खुद को बेहतर महसूस करूंगी मैं? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। वो अगर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं तो मैं भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। मैं दोबारा कभी उन दोनों से मिलना नहीं चाहती। ठीक है, उनके पास मत जाओ, कहीं और चली जाओ, ग्रैनी के साथ। मुझे नानों के साथ भी कहीं नहीं जाना। ग्रैंड पा के साथ चली जाओ। उनके साथ भी नहीं जाना। अकेले जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता, बार बार ऐसे ना कहें। वो अब उससे उलझ रही थी। क्या प्रॉब्लम है अलीजा, क्यों इस तरह कर रही हो? आप में से कोई भी मेरे प्रॉब्लम्स का अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि आप में से कोई भी अलीजा सिकंदर नहीं है। ठीक है, हम में से कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि हम अलीजा सिकंदर नहीं है। मगर तुम खुद अपने साथ क्या कर रही हो? तुमने ये सोचा है? मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तुम ठीक नहीं कर रही, तुम अपनी जिंदगी और खुद को जाया कर रही हो। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे करने दें। 4-5 साल बाद तुम कहाँ खड़ी होगी, क्या तुमने कभी ये सोचा है? उमर का लहजा एकदम नरम हो गया। क्या जरूरी है कि मैं 4-5 साल के बाद भी जिंदा हूँ? इतनी ज्यादा जिंदगी मुझे क्या करनी है? उमर चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। ये ज्यादा जिंदगी है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। पिछले 18 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मेरी किसी को जरूरत है? मेरे पेरेंट्स को नहीं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नानो और नाना को नहीं, उनके लिए और बहुत से लोग हैं। शहला के पास भी और बहुत सी फ्रेंड्स हैं। हर शख्स के पास मेरा नेमुल बदल है। फिर मेरी क्या जरूरत है? वो फिर उसी जहनी इंतशार का शिकार नजर आई। तुम्हारी जिंदगी में ये मीनिंगलेसनेस इसलिए है कि तुम अपनी जिंदगी को सोचे समझे बगैर गुजारने की कोशिश कर रही हो। जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखोगी तो दुनिया के स्टेज पर तुम्हें अपनी जगह नजर आ जाएगी, मगर नेगेटिव तरीके से देखोगी तो तुम खुद को कहीं भी देख नहीं सकोगी। उमर ने उसे समझाने की कोशिश की। अलीजा पलकें झपके बगैर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखती रही। तुम्हें एक बहुत लंबी और अच्छी जिंदगी गुजारनी है।
पुरसुकून और बामकसद जिंदगी। उमर बोलता रहा, किस के लिए रोती होगी और कब तक? फिर एक दिन तुम्हें चुप होना ही है, मगर तब तुम अपना बहुत वक्त जाया कर चुकी होगी कि तुम कहीं भी खड़ी नहीं हो पाओगी। जहनी तौर पर तुम एक अंधी गली के आखिरी सिरे पर होगी। तब वापसी का रास्ता तुम भूल चुकी होगी और तुम्हारे आगे कोई रास्ता नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगी? अलीजा भी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उमर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आप एक इंतहाई अजीब इंसान हैं। वो अलीजा से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। आप मुझे वो चीजें सिखाना चाहते हैं जो आपको खुद नहीं आती। उमर साकित रहा। जिंदगी के स्टेज पर आपकी जगह कहाँ है? क्या आप खुद ये जानते हैं? उमर कुछ बोल नहीं सका। अलीजा अब जैसे उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है, बाज दफा मुझे आप पर कितना तरस आता है। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। कितनी हमदर्दी महसूस होती है आपके लिए। वो इंतहाई बेरहमी से उसकी शख्सियत की परतें उतार रही थी। आप और मैं दोनों जिंदगी में एक ही जगह खड़े हैं। बस फर्क यह है कि आपको खुद को छुपाना आता है, मुझे नहीं आता। उमर को एकदम बहुत मैच्योर लगी। वो उसकी बात में मुदाखलत किए बगैर उसे देखता रहा। क्या आपने खुद हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? वो अब उससे पूछ रही थी। किस चीज के साथ? अपने पेरेंट्स की अलहदगी के साथ। वो कुछ नहीं बोला। अलीजा के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। और आप चाहते हैं मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं? वो अब उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। आप 10 साल के थे जब आपके पेरेंट्स में तलाक हुई। क्या आपने कुछ भी महसूस नहीं किया? क्या आपको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ? वो अब उसको चैलेंज कर रही थी। फिर जहांगीर अंकल को नापसंद क्यों करते हैं आप? अपनी मम्मी की शक्ल देखने पर तैयार क्यों नहीं? अपने सौतेले बहन भाइयों का कभी नाम तक नहीं लिया आपने। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो अलीजा? उमर का लहजा पुरसुकून था। अलीजा चिढ़ गई। सच, सिर्फ सच, वो सच जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया। सच ये है कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत है। सच ये है कि मैं आज तक उन दोनों को माफ नहीं कर सका। सच ये है कि मैं उन दोनों में से किसी की भी इज्जत नहीं करता। सच ये है कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। सच ये है कि मुझे उन लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि 16 साल पहले उन दोनों के दरमियान होने वाली अलहदगी की याद अभी भी एक गर्म सुलाह की तरह मेरे वजूद में उतर जाती है। वो अब बोलता जा रहा था। सच ये है कि तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में अपने माँ बाप से ज्यादा खुदगर्ज कोई नहीं लगता। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अरसा ये सब कुछ भुलाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के जेरे इलाज रहा। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सच ये है कि अब भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। और सच ये भी है कि सबके बावजूद अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या इतना सच काफी है या तुम कुछ और सच भी सुनना चाहती हो? उसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बेतासुर और लहजा इतना मुतमईन था कि अलीजा को यूं लगा जैसे वो अपने बारे में बात करने की बजाय किसी और की बात कर रहा हो या फिर किसी एक्ट के डायलॉग स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, उमर ने संजीदगी से कहा। मैं इस रस्ते से पहले गुजर चुका हूँ, जानता हूँ कहाँ गड़ा है, कहाँ पत्थर, कहाँ पैर जख्मी हो सकते हैं, कहाँ घुटनों के बल गिरने का खदशा है। और मैं चाहता हूँ तुम उस रस्ते से गुजरते हुए वहां ठोकर ना खाओ जहां मैं खा चुका हूँ। तो चुपचाप उसे देखती रही। हम लॉस्ट जनरेशन है अलीजा। हमारे पीछे क्या था हम भुलाना चाहते हैं, हमारे आगे क्या है हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए है। उसे उमर की आवाज में अफसुर्दगी महसूस हुई। सो यहाँ पर आप लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे ना, जो मैंने कहा था कि ये नॉवल आप ये समझें कि इस टाइम की जनरेशन के लिए है। ये तब की जनरेशन के लिए भी था जो हमारे पेरेंट्स थे, ये अब हमारे लिए भी है। और मैं भी ये नॉवल हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी रिलेटेबल हो, ये बहुत रिलेटेबल लगता है मुझे। खैर चलिए। उसे उमर की आवाज में अफसुर्दगी महसूस हुई। हम बड़े घरों में रहते हैं, जिंदगी में इन आसाइशात से महजूज होते हैं जो इस मुल्क की 98% आबादी के पास नहीं है। शानदार लिबास से लेकर बेहतरीन इदारों में मिलने वाली तालीम तक कोई भी चीज हमारी रसाई से बाहर नहीं हुई। लेकिन जब सवाल रिश्तों का आता है तो हमारे चारों तरफ ऐसी तारीकी छा जाती है जिसमें कुछ भी ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए जिंदगी से बाहर भी कुछ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम इन्हीं रिश्तों के साथ रहें जो हमें मसनूई लगते हैं। वो बोल रहा था। दुनिया को कोई दरवाजा नहीं होता जिसे खोलकर हम उससे बाहर निकल जाएं। उसने अलीजा का जुमला दोहराया। अलीजा ने सर झुका लिया। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाल दफा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, बाल दफा ये अपने अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रहाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। वो जैसे फलसफा बोल रहा था। अलीजा को हैरत हुई। उसने उमर को इस तरह की बातें पहले कभी करते नहीं सुना था। जिंदगी जुल्करनैन से शुरू होती है, ना उस पर खत्म होती है। जुल्करनैन तुम्हारे लिए वो तजर्बा है जिस पर कभी तुम बहुत हंसोगी।
ये सोचकर कि क्या तुम उस शख्स के लिए खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी में इंसान की एक आदत जरूर जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। वो अब लापरवाही से कह रहा था, इंसान चीजें नहीं होते। आपने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि आपको किसी ने मेरी तरह रिजेक्ट नहीं किया होगा। इस तरह किसी ने आपके एहसासात का मजाक नहीं उड़ाया होगा, जैसा जुल्करनैन ने मेरे साथ किया। उमर उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। ये गलतफहमी दूर कर लो अलीसा। मुझे किस किस तरह और कितनी दफा रिजेक्ट किया गया है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती, क्योंकि उसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं है। रिजेक्शन इंसान की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कभी हम किसी को रिजेक्ट करते हैं और फिर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है। इस चीज के बारे में इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इसे तो बहुत नॉर्मल लेना चाहिए। तुम्हें किसी दिन बताऊंगा कि मुझे कितनी दफा रिजेक्ट किया गया। वह बिल्कुल नॉन सीरियस नजर आ रहा था, जो लग रहा था जैसे अब वो अलीजा के साथ होने वाली गुफ्तगू से महजूज हो रहा हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि आज से 5 साल बाद जुल्करनैन और मेरे जैसे बहुत से तुम्हारे लिए लाइन में लगे होंगे, और तब तुम कहोगी, नहीं, इस किस्म के लोग नहीं चाहिए मुझे, इनसे बेहतर चीज होनी चाहिए। जैसे दुकान पर जूता पसंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो किसका मजाक उड़ा रहा था अलीजा अंदाजा नहीं कर सकी। और अलीजा सिकंदर का शोहर एक बड़ा खुशकिस्मत शख्स होगा। उसने बच्चों की तरह सर उठाकर देखा। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उमर जहांगीर की बीवी भी एक खुशकिस्मत लड़की होगी, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं, उमर जहांगीर की कोई बीवी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे शादी में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं है, उमर ने लापरवाही से कहा। क्यों? बस वैसे ही, मुझे ये आजादी अच्छी लगती है। बीवी से खासे मसाइल पैदा हो जाते हैं और मेरे पास मसाइल की पहले भी कमी नहीं है। ये तो बड़ी फजूल बात है। अलीजा को उसकी राय पर एतराज हुआ। नहीं, फजूल बात नहीं है, हकीकत है। मैं किसी की भी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता, और बीवी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस मौजू पर दोबारा कभी बात करेंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। उसने बात का मौजू बदल दिया। अलीजा को एक धचका लगा। क्यों? इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अब रिजल्ट का इंतजार करने के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे, और रिजल्ट में चंद माह लग जाएंगे, फिर ट्रेनिंग शुरू होते होते 7-8 माह तो लग ही जाएंगे, और इतना लंबा अरसा मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। वापस जाकर सुकून से कुछ वक्त गुजारूंगा। वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है चंद माह के लिए स्पेन चला जाऊं या फिर इंग्लैंड, लेकिन कुछ चेंज चाहता हूँ। पाकिस्तान में इतने माह एक ही तरह के रूटीन से तंग आ गया हूँ। उसने तफसील से अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा। आप मत जाएं। क्यों भाई, क्यों ना जाऊं? तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आता था तो शुरू में तुम मुझे रखना नहीं चाहती थी। वो मैंने उसे याद दिलाया। वो कुछ खज्जल सी हो गई। तब और बात थी, अब क्या है? अब मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा आपका यहाँ रहना। मुझे वापिस आना ही है, बस कुछ माह की बात है, फिर यहीं लाहौर में ट्रेनिंग होगी और मैं लाहौर में ही हूँगा। उमर ने उसे तसल्ली दी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है ये कि अलीजा सिकंदर मुझे मिस करेगी। मैं सीरियस हूँ। अगर तुम साइकोलॉजिस्ट से दोबारा अपना इलाज शुरू कराओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं इलाज करवाऊंगी, अलीजा ने बिला तवक्कुफ कहा। ठीक है, फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ वापस आ जाऊंगा। उमर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीजा ने कुछ बेजान अंदाज में उसे हाथ मिलाया। तो कल हम दोबारा पहले वाली अलीजा से मिलेंगे, ठीक है ना? उमर ने उठते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। क्रिस्टी को तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं? उमर ने जाते जाते पूछा। नहीं, मैं खुद उसे ले आती हूँ। अलीजा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाब नंबर 36। नानो की बात का जवाब देने के बजाय उमर ने अपने सामने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल उठा लिया। वो अब कोई नंबर मिला रहा था। अलीसा ने नानो को देखा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उमर को देख रही थी। इस खबर पर उमर का रद्द-ए-अमल उनके लिए गैर मामूली और हैरान कुन था। वो बार बार मोबाइल पर कुछ नंबर डायल कर रहा था, मगर शायद राब्ता कायम नहीं हो पा रहा था। अब उसके चेहरे पर झंझलाहट नजर आने लगी। मोबाइल बंद करके उसने तकरीबन उसे सेंटर टेबल पर फेंक दिया, जो वहां से फिसलता हुआ नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। अब वो लाउंज में मौजूद टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। अलीजा और नानो खामोशी से उसकी सरगर्मियां देखती रहीं। अंकल अय्याज से बात करवाओ, वो अब फोन पर बड़ी दृष्टि के साथ किसी से कह रहा था। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से उससे यकीनन यही पूछा गया था, जिसके जवाब में उसने कहा, मैं उमर जहांगीर हूँ, उनका भतीजा। अलीजा ने यकदम उसके चेहरे को सुर्ख होते देखा। बात नहीं करना चाहते वो मुझसे? फोन दो तुम उन्हें, वो अब बुलंद आवाज से किसी से कह रहा था। मैं उन्हें फोन नहीं दे सकता, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, अलबत्ता आपके लिए उनका एक पैगाम है। दूसरी तरफ से उसे इतला दी गई। क्या पैगाम है? उसके माथे पर बल आ गए। वो कल लाहौर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप कल लाहौर में ही रहें, वापिस ना जाएं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे अभी और इसी वक्त बात करना चाहता हूँ, उमर ने पैगाम सुनने के बाद कहा।
ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वो इस वक्त मसरूफ हैं। मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लूंगा। वो तब भी मसरूफ होंगे। क्या वो सारी रात ही मसरूफ रहेंगे? उमर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हो सकता है। उमर ने फोन पटक दिया। उसके फोन रखते ही नानो ने उसे मुखातिब किया। क्या परेशानी है तुम्हें उमर? कोई परेशानी नहीं है, उसने उसी तरह झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। अयाज को क्यों बार बार फोन कर रहे हो? उमर ने उनके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। अलीजा ने उमर के चेहरे पर पहली बार थकन देखी। अंकल, अयाज ने शहबाज का कत्ल करवाया है, अलीजा ने कुछ देर बाद उसे कहते सुना। क्या कह रहे हो तुम? कौन शहबाज? नानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। आपने अभी टीवी पर जिस जर्नलिस्ट के कत्ल की खबर सुनी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मगर मगर अयाज क्यों किसी को कत्ल करवाएगा? शहबाज दोस्त था मेरा। मैंने पापा के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स उसको आज ही फैक्स किए थे। मुझे अंदाजा नहीं था अंकल अयाज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। नहीं, अयाज इतनी सी बात पर किसी को कत्ल नहीं करवा सकता। वो तो कत्ल करवा ही नहीं सकता। नानो को उमर की बात पर यकीन नहीं आया। आपके बेटे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे गैंग लीडर हैं जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उमर के लहजे में तल्खी सी। कराची के हालात वैसे ही खराब हैं। वहाँ अखबारात के दफातर पर हमले रोज का मामूल हैं। ये भी ऐसा ही कोई हमला होगा। नानो ने उमर की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। अखबारात के दफातर लाहौर में भी हों और वो सच छापने की कोशिश करेंगे तो उन पर उसी तरह हमले होंगे। उनके एडिटर्स को इसी तरह कत्ल किया जाता रहेगा। जहाँ बात कराची और लाहौर की नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे पर चढ़े हुए मास्क को उतरने से बचाने की है। फिर भी अयाज ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्या जरूरत है खामखा किसी को कत्ल करवाने की? सारा झगड़ा तो तुम्हारा और जहांगीर का है। वो खुद को तुम दोनों के झगड़े में क्यों इन्वॉल्व करता? ये काम किसी एजेंसी के आदमियों का है। इतनी दीदा लेडी से सिर्फ वही शहबाज के दफ्तर को आग लगा सकते हैं और अंकल अयाज इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में है। ऐसी गुंडागर्दी वही करवा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पापा के कहने पर ही शहबाज को कत्ल करवाया हो, मगर शहबाज को ट्रेस आउट सिर्फ अंकल अयाज ही करवा सकते हैं। और शायद वो इस वक्त ये काम करवा चुके थे जब उन्होंने फोन पर मुझसे बात की थी। पापा को अंदाजा होगा कि अखबार में मेरे बारे में ये सब कुछ आने पर मेरा फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा। इसलिए वो पहले ही शहबाज मुनीर को ट्रेस आउट किए बैठे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं उनके समझाने पर बाज नहीं आऊंगा और जब वो ये भी जान गए कि डॉक्यूमेंट शहबाज तक पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने वक्त जाया किए बगैर उसे मार दिया। मुझे अगर अंकल से बात करते हुए जरा बराबर भी शक हो जाता कि वो शहबाज के बारे में जानते हैं, तो मैं कभी शहबाज को वो डॉक्यूमेंट्स ना देता या कुछ दिन इंतजार कर लेता। उसकी आवाज में पछतावा था। तुम वक्त से पहले नताइज अखज कर लेते हो। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती, वो भी अपने बाप और अंकल के बारे में। नानो को इसकी बात पर अब भी यकीन नहीं था। उनका ख्याल था उमर जज्बाती होकर सोच रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। ग्रैनी, मैं अपने खानदान को आपसे बेहतर जानता हूँ। आप सिर्फ माँ बनकर सोचती हैं। आपको पापा और अंकल अयाज या किसी भी दूसरे अंकल की कोई खामी नजर नहीं आ सकती, ना आज ना ही आइंदा कभी। मगर उमर, नानो ने कुछ कहने की कोशिश की मगर उमर ने उनकी बात काट दी। अंकल कल लाहौर आ रहे हैं। यहीं आपके सामने मेरी उनके साथ मुलाकात होगी। आप देख लीजिएगा आपका बेटा कितना मासूम है। उमर ने जैसे बात खत्म कर दी। लाउंज में अब मुकम्मल खामोशी थी। वहां बैठे हुए तीनों किरदार जैसे अपनी अपनी सोच में गुम थे। तुम आज रात यहीं रुकोगे? नानो ने एक लंबे वक्फे के बाद उस खामोशी को तोड़ा। हाँ, उमर ने मुख्तसरन जवाब दिया। अलीजा, उमर का कमरा खुलवा दो। एक बार खुद भी देख लो, किसी चीज की जरूरत ना हो। नानो ने इस बार अलीजा को मुखातिब किया। वो कुछ कहे बगैर कॉफी के मग समेत वहां से उठ गई। उमर का कमरा खुलवाते और बेडशीट चेंज करवाते हुए वो खुद भी बुरी तरह उलझी हुई थी। उसका जहन ये समझने से कासिर था कि अंकल अयाज इस तरह किसी का कत्ल कैसे करवा सकते हैं, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। क्या चंद खबरों को शाया होने से रोकना और उनके लिए इतना अहम हो गया था कि उन्होंने एक इंसानी जिंदगी खत्म करना जरूरी समझा? या फिर ये सब उमर की बदगुमानी और गलतफहमी है? हो सकता है ये सब वाकई किसी गलतफहमी का नतीजा हो। उसने जैसे सोचते हुए खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। हो सकता है नानो ठीक ही कह रही हो कि उमर वक्त से पहले नताइज अखज करने की कोशिश करता है। उसके तो हर एक के साथ इख्तलाफात होते रहते हैं, किसी बारे में भी उसकी राय ठीक नहीं है। जो शख्स हर एक के बारे में खराब राय रखता हो, उसकी राय को आखिर कितनी अहमियत दी जा सकती है, और देनी भी नहीं चाहिए। वो उसके कमरे से निकलने वाली थी जब उमर वहां आ गया। क्या रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल है? उसने अंदर आते ही पूछा।
नहीं, मैं ला देती हूँ। वो कमरे से निकल गई। किचन में मौजूद फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर वो जब वापस कमरे में आई तो वो बेड पर बैठा एक सिगरेट सुलगा रहा था। उसने पहली बार उमर को सिगरेट नोशी करते देखा था, मगर उसे हैरानी नहीं हुई। जो ड्रिंक कर सकता है वो स्मोकिंग तो यकीनन करता होगा। उस पर एक सरसरी नजर डालते हुए उसने सोचा और रूम रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गई। रेफ्रिजरेटर को ऑन करने के बाद उसने पानी की बोतल अंदर रखी और कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अलीजा, उमर ने उसको आवाज दी थी। उसने पलटकर उसे देखा। कुछ देर मेरे पास बैठ सकती हो? उसे थप्पड़ मारे जाने वाला वाकये के बाद आज पहली बार वो उसे मुखातिब कर रहा था। अलीजा का दिल चाहा वो कहे नहीं, मगर वो कुछ भी कहे बगैर उसकी तरफ आ गई। उससे कुछ फासले पर वो बैठ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, उमर ने बिला तवक्कुफ कहा। उसका चेहरा देखती रही। उमर अब जैसे कुछ लफ्ज तलाश कर रहा था। मैं तुमसे माजरत करना चाहता था, उसने कहा। अलीजा को इस जुमले की तवक्का नहीं थी। उसने उमर के चेहरे से नजरें हटा ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उस वक्त से ये सब कह रहा था जब वो उस माजरत की तवक्का करना भी छोड़ चुकी थी। क्या नहीं करना चाहिए था? मध्यम आवाज में कहते हुए उसने उमर के चेहरे को एक बार फिर देखने की कोशिश की। तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपको हाथ उठाने पर अफसोस है? नहीं, सिर्फ तुम पर हाथ उठाने पर अफसोस है। वो जान नहीं पाई उसकी आंखों में आंसू क्यों आए थे। क्या उसे खुशी हुई थी कि वो उससे माजरत कर रहा था, या फिर उसे ये मलाल हुआ था कि वो इतने लंबे अरसे बाद उससे माजरत कर रहा था। उसने उमर के चेहरे से नजरें हटा ली। कम अज कम वो उसके सामने बच्चों की तरह रोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे बहुत पहले से माजरत करना चाहता था, मगर मुझसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो कहते कहते रुक गया। शर्मिंदगी? अलीजा ने सोचा। कम अज कम तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसे मैं कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ओ, सो स्वीट। बस इस नॉवल की इन्हीं लाइनों ने तो हमें बर्बाद किया हुआ है और हम इसे बार बार पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अलीजा ने याद करने की कोशिश की कि उमर ने ये जुमला उसे कितनी बार कहा था, वाहिद हस्ती। वो इस बार किसी एल्यूजन का शिकार नहीं हुई। वो अब खामोश था, शायद उससे कुछ सुनना चाहता था। मुझे थप्पड़ मारना पसंद करोगी? अलीजा ने बेइख्तियार उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका दिल चाहा वो उमर से कहे, तुम भी वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नहीं, उसने बस इतना कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है? उसने पूछा। वो धुएं के मरगोलों में से उसका चेहरा देख सकती थी। उमर, आप सिविल सर्विस छोड़ दें, उसने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। उमर के चेहरे पर उसे हैरानी नजर आई। शायद वो उसे इस मशवरे की तवक्का नहीं कर रहा था। आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, आप वापस अमेरिका चले जाएं या फिर इंग्लैंड जहां आप पहले काम कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। आप खुद को जाया कर रहे हैं। सिविल सर्विस आपको आपकी सारी खूबियों से महरूम कर देगी। उसने उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। क्या उमर जहांगीर में कोई खूबी है? 5 साल पहले आप ऐसे नहीं थे, मगर अब आप, मैं नहीं जानती आपको खुद अंदाजा है या नहीं, मगर आप बदलते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वापस चले जाएं, उसने इसरार किया। मैं नहीं जा सकता, उसने नरम आवाज में कहा। क्यों? उमर ने एक और सिगरेट सुलगा लिया। चंद हजार रुपए की ये जॉब आपके लिए इतनी बड़ी टेम्पटेशन क्यों बन गई है? बात इस जॉब की नहीं है, बात उस पावर की है, उस अथॉरिटी की है जो ये जॉब मुझे दे रही है। आपको क्या जरूरत है उस अथॉरिटी की? जरूरत है, कम अज कम अपने बाप के सामने खड़ा होने के लिए मुझे इस अथॉरिटी की जरूरत है। मेरे हाथ में ताकत होगी तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। कुछ सालों के बाद अंकल जहांगीर रिटायर्ड हो जाएंगे, तब आपका और उनका मुकाबला वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या बेहतर नहीं है कि आप इस बेमायनी मुकाबले में खुद को जाया ना करें, पहले ही ये सब कुछ छोड़ दें? वो बड़े खलूस से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो अलीजा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर इस मैच्योरिटी का क्या फायदा जो इंसान को एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने नहीं दे रही? उमर ने सर उठाकर संजीदगी से उसे देखा। तुम्हारा ख्याल है मैं पुरसुकून नहीं हूँ? हाँ, आप पुरसुकून नहीं हैं। जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हो वो ड्रिंक नहीं करता। उसे स्मोकिंग, ये दोनों आदतें आपने अब इख्तियार की हैं। वो उसे कायल करना चाह रही थी। तुम गलत कह रही हो अलीजा। सिविल सर्विस में आने से पहले भी मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था। उसने इंकशाफ किया। मैं 14 साल की उम्र से ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो अब हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रहा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान कोकेन भी लेता रहा, इसलिए इन चीजों का सिविल सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर 5 साल पहले जब आप यहाँ आए थे, तब तो आप इन दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करते थे, अलीजा ने हकलाते हुए कहा।
करता था, आदतन नहीं, शौकिया, मगर जब तक यहाँ रहा अवॉइड करता रहा। अलीजा को समझ में नहीं आया वो अब क्या कहे। मगर तुम ठीक कहती हो, मैं पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा। वो अब तीसरा सिगरेट सुलगाते हुए एतराफ कर रहा था। मगर क्या किया जा सकता है? सिर्फ अथॉरिटी के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आप वापस चले जाएं, कम से कम ये सारी टेंशन तो खत्म हो जाएगी। क्या मिलेगा वापस जाकर? क्या है बाहर? तन्हाई, मादा प्रस्ती। वो उम्र की बात पर हैरान हुई। 32 साल की उम्र में क्या उम्र अब भी तन्हाई से खौफजदा है? मादा प्रस्ती से डरता है? क्या उम्र? एक जॉब मिल जाएगी, दो कमरों का एक बुक जितना अपार्टमेंट, सुबह से रात तक डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए मशीनी जिंदगी, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, क्योंकि जिंदगी की वो आसाइशात चाहिए जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। पेनी और सेंट जमा करके बनाया हुआ बैंक बैलेंस, नौकरों से महरूम एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर अपने जूते पॉलिश करने से खाना पकाने तक हर काम मुझे खुद करना पड़ेगा, जहाँ पर घर में कुछ मेहमान आ जाने पर मेरी समझ में ये नहीं आएगा कि उन्हें कहाँ बिठाऊं और कहाँ सुलाऊं। तुम तो अपनी मम्मी के पास जाती रहती हो, अंदाजा कर सकती हो वो कैसी जिंदगी गुजार रही हैं। मगर सब कुछ हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा, कुछ वक्त गुजरने के बाद आप वहां सेटल हो जाएंगे, अलीजा ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, सारी जवानी रुपए के पीछे भागने के बाद बुढ़ापे में मेरे पास इतना रुपया जरूर जमा हो जाएगा कि मैं कुछ ना करने के बावजूद भी ऐश कर सकता हूँ। ऐश? वो अजीब से अंदाज में हंसा। मगर ये सब कुछ तो नहीं होगा। ये इल्जामात, वो सब कुछ जो आपको मजबूरन करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। मगर वहां मेरे पास वो आसाइशें नहीं होंगी जो यहाँ हैं। ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही इन सब सहूलतों के बगैर मैं नहीं रह सकता। वो उसका चेहरा देख कर रह गई। इन 5 सालों में इतना कुछ बना लिया है मैंने, पाकिस्तान से जाकर अगले 10 सालों में भी नहीं बना सकता। मगर जमीर पर बोझ लेकर जिंदा रहना आसान है? जमीर? वो हंसा। इस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। वो अंदाजा नहीं कर सकती थी वो किस पर हंस रहा था। इस सदी में जमीर को लेकर कौन फिरेगा अपने साथ? कम से कम मेरे जैसा शख्स नहीं जिसकी परवरिश हराम पर हुई हो, जिसके खून में हराम की इतनी आमेजिश हो चुकी हो कि वो ना हलाल खा सके ना कमा सके। जमीर का कोई बोझ नहीं है अलीजा मेरे कंधों पर। वो उसे पहली बार बेबस नजर आ रहा था। जमीर अगर इस सदी में भी कुछ लोगों के पास होता है तो उसका वो हाल होता है जो शहबाज मुनीर का हुआ। अलीजा को उसके चेहरे पर कुछ साए लहराते नजर आए। वो अब एक और सिगरेट सुलगा रहा था। 1 हफ्ते पहले बेटा पैदा हुआ उसके यहाँ, अभी उसने नाम नहीं रखा था उसका। वो अब जैसे एतराफ कर रहा था। पिछले 10 साल से मेरी दोस्ती थी उसके साथ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा। डिग्री लेने के बाद अगले दिन मुंह उठाकर पाकिस्तान आ गया। स्कॉलरशिप मिल रहा था मजीद तालीम के लिए। नहीं लिया। वो उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। यूनिवर्सिटी से जॉब की ऑफर हुई, यहाँ नहीं करनी। उसे अंदाजा था वो खिड़की के पास क्यों चला गया था। उसकी आवाज अब भराने लगी थी। वो अब रुक रुक कर बात कर रहा था। जिससे मोहब्बत की, उससे शादी भी नहीं की। उसके साथ कैलिफोर्निया में पढ़ती थी वो लड़की। उसके साथ पाकिस्तान आने को भी तैयार थी। मैंने उससे कहा, पाकिस्तानी लड़की है, तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाकर एडजस्ट हो जाएगी। फिर क्या मसला है? वो कहने लगा, एडजस्ट नहीं होगी। 2 माह रहेगी, 4 माह रहेगी, 6 माह बाद शोर करेगी वापस जाना है। फिर ये बताना शुरू कर देगी कि मैं अमेरिका में कितना कमा सकता हूँ और पाकिस्तान में कितना कमा रहा हूँ। फिर रोएगी और कहेगी मैं उसे तकलीफ दे रहा हूँ और मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये वहां जाकर रोएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फिर शायद उसके लिए सब कुछ छोड़कर वापिस आ जाऊं। और ये सब मैं नहीं चाहता। बेहतर है कल रोने की बजाय ये आज रो ले, गालियां दे ले मुझे, फिर आराम से अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी। मैं भी पाकिस्तान जाकर कुछ अरसे के बाद वहां की किसी लड़की से शादी कर लूंगा और कुछ भी हो, कम से कम वो पाकिस्तान छोड़ने के बारे में नहीं कहेगी। वो खामोश हो गया। अलीजा उसकी पुष्ट को देखती रही। एक ही जुमला होता था उसकी जुबान पर, पाकिस्तान जाना है। जरूरत है मेरे मुल्क को मेरी। उसके फादर भी जर्नलिस्ट हैं और उसकी इस ब्रेन वॉशिंग के जिम्मेदार भी। मैंने 3 न्यूज़पेपर्स के एडिटर से कांटेक्ट किया पापा के बारे में वो सारे सबूत शाया करवाने के लिए। 3 बड़े न्यूज़पेपर्स जिनका दावा है कि वो सच के अलावा कुछ शाया नहीं करते। तीनों के एडिटर्स ने माजरत कर ली। वो बात करते करते रुक गया। जहांगीर मास के बारे में खबर शाया करने के लिए जिस हौसले और जुर्रत की जरूरत थी वो उनमें नहीं थी, सच के नाम नेहाद अलम्बरदारों के पास। फिर मुझे शहबाज मुनीर याद आया और अब मुझे पछतावा है कि काश मैं उसे वो सब कुछ ना भिजवाता, या फिर वो भी दूसरों की तरह इनकार कर देता तो शायद आज जिंदा होता। खबरों का क्या है, सिर्फ खबरें लगने से किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदला करती। मगर वो ऐसा नहीं सोचता था।
ज़मीर था ना उसके पास, इसीलिए, और इस ज़मीर ने उसे मौत दे दी। वो एकदम खामोश हो गया। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो उसे क्या कहे। क्या उसे ये बता दे कि नानो की तरह उसे भी इस बात पर यकीन नहीं था कि अयाज अंकल ने इतनी मामूली बात पर इतना बड़ा कदम उठाया होगा। मगर उमर के लहजे का एतमाद और यकीन हमेशा की तरह उसकी राय को मुतज़लज़ल कर रहा था। उमर, क्या आपको यकीन है कि अंकल अयाज? अलीज़ा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उमर एक गहरी सांस लेकर पलटा, कुछ कहे बगैर वो एक बार फिर बेड पर आकर बैठ गया। अलीज़ा ने अपना सवाल नहीं दोहराया। अब आप क्या करेंगे? वो अब भी खामोश था। अलीज़ा को यकदम यूं लगा जैसे वो ज़हनी तौर पर कहीं और पहुंचा हुआ हो। वो परेशान था, वो उलझा हुआ था, या फिर वो अपने लिए आगे की हिकमत अमली तय कर रहा था। अलीज़ा अंदाजा नहीं लगा सकी। अगली सुबह हमेशा की तरह थी। उमर देर से उठा था। नाश्ते की मेज पर तीनों ने बड़ी खामोशी के साथ नाश्ता किया। 12 बजे के करीब अलीज़ा ने पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उमर लाउंज में न्यूज़पेपर देख रहा था। वो उठकर बाहर निकल गया। नानो भी उसके पीछे निकल गई। कुछ देर बाद उसने अंकल अयाज और जहांगीर अंकल के साथ नानो और उमर को दोबारा लाउंज में आते देखा। उमर के चेहरे पर तनाव की कैफियत थी जब अंकल अयाज और अंकल जहांगीर बहुत पुरसुकून नजर आ रहे थे। रस्मिया लैक्स लैग के बाद वो लाउंज से उठकर किचन में आ गई। नानो ने उसे दोपहर का खाना अपनी निगरानी में तैयार करवाने का कहा था। उमर और नानो लाउंज में ही थे। किचन में उन सबके दरमियान होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुनी जा सकती थी और वो चाहते हुए भी लाउंज से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। जहांगीर अंकल के बरक्स अंकल अयाज का बात करने का एक मखसूस अंदाज था। वो बहुत नरमी से बात करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट मौजूद रहती थी, और ये मुस्कुराहट कई बार सामने बैठे हुए शख्स के लिए खासी सब्र आजमा साबित होती थी। वो बहुत लाइट मूड में बात किया करते थे और अक्सर बेमायनी और बेमकसद बातों से गुफ्तगू का आगाज करते थे। इस वक्त भी अंदर यही हो रहा था। ब्लू कलर बहुत सूट करता है तुम्हें, वो उमर से कह रहे थे। क्यों जहांगीर, ये उमर कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं हो गया? या फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है? मैंने कुछ शर्ट्स मंगवाई हैं चंद दिनों पहले, अभी वापस इस्लामाबाद जाते ही तुम्हें भिजवाऊंगा। वो इंतहाई खुशगवार अंदाज में कह रहे थे। इस्लामाबाद से यही बताने आप यहाँ आए हैं? उमर ने किसी तमहीदी गुफ्तगू के बगैर कहा। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए आए हैं। बच्चों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। मैं जहांगीर को खास तौर पर साथ लेकर आया हूँ कि भाई तय कर लो अपने प्रॉब्लम्स। क्यों सारी फैमिली को मुसीबत में डाल रहे हो? अब जो तुम्हारे सामने बैठा है, जो कुछ कहना है कहो, मगर बात खत्म करो। मम्मी लंच में क्या बनवा रही हैं? अयाज हैदर ने कमाल महारत के साथ एक मौजू से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर आते हुए कहा। वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे उस झगड़े की सिरे से कोई अहमियत ही नहीं थी और वो दर हकीकत किसी फैमिली गेट टुगेदर में शिरकत करने के लिए आए थे। आपको पता है आपने क्या किया है? मैंने? अंकल अयाज ने कुछ चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा। शहबाज को कत्ल करवाया है आपने? ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये तुम्हारी जिद और हठधर्मी की वजह से हुआ है, अंकल जहांगीर ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, उमर ने दृष्टि से उन्हें टोक दिया। नानो को अंकल जहांगीर के इस एतराफ से जैसे कुछ शौक लगा था और कुछ यही हाल किचन में मौजूद अलीजा का था। उमर के क्यास सिर्फ क्यास नहीं थे। तुम कुत्ते की वो दुम हो जो हमेशा टेढ़ी रहती है। यहाँ तुम्हारे पास मैं कोई मिन्नत समाजत करने नहीं आया। तुम्हारे जैसे मामूली जूनियर अफसर की औकात क्या है मेरे सामने? तुम्हारा दिल चाहे तो किसी दूसरे शहबाज मुनीर की खिदमत हासिल कर लेना और नतीजा देख लेना। उसकी बात के जवाब में जहांगीर माज ने बेहद सर्द और तल्ख लहजे में उससे कहा। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, अंकल अयाज ने बरवक्त मुदाखलत की। क्या फजूल बातें शुरू कर दी तुमने जहांगीर? मैं तुम्हें यहाँ उमर से लड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। उमर तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उमर ने उनकी बात के जवाब में क्या कहा। आपने शहबाज को कत्ल क्यों करवाया? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे? डॉक्यूमेंट्स तो अब भी मेरे पास हैं, मैं कल किसी और न्यूज़पेपर को दे दूंगा। आप मुझ पर कितनी निगरानी करवा सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास? जहांगीर के कुछ फॉरेन अकाउंट्स की तफसीलात, कुछ और डील की तफसीलात, बस? अयाज हैदर का लहजा यकदम बदल गया। मेरे पास तुम्हारे सारे अकाउंट्स की तफसीलात हैं। उनको कैसे जस्टिफाई करोगे? जब अपना हिस्सा ले चुके हो तो इतना शोर करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यकीन तो दिला रहे हैं कि इंक्वायरी भी शुरू नहीं होने देंगे। आप यहाँ मुझे धमकाने आए हैं? इस बार उमर ने बुलंद आवाज में कहा और अलीजा ने अंकल अयाज को जवाब उससे भी बुलंद आवाज में बोलते सुना। मेरे सामने गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहांगीर नहीं हूं कि तुम्हारी बकवास और बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगा। आवाज को आहिस्ता रखकर बात करो। 50 साल से मेरे खानदान ने जो इज्जत बनाई है उसे तुम जैसे बेवकूफ शख्स के हाथों तबाह होने तो मैं नहीं दूंगा। कल भी तुम्हें खासा समझाने की कोशिश की मैंने, आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए जहांगीर को यहाँ लेकर आया हूँ, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा।
बड़े खानदान अपना नाम और वकार बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं, और खानदान का नाम बचाने के लिए शहबाज मुनीर की जगह उमर जहांगीर भी हो सकता है। इस खानदान को उमर जहांगीर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तुम अच्छी तरह याद रखो। अलीजा ने अयाज अंकल को बुलंद आवाज में इस तरह बात करते पहली बार सुना था। बुलंद आवाज उसके लिए इतनी हैरान कुन नहीं थी जितना उनका गुस्सा था। उसका ख्याल था उमर जवाबन ज्यादा तल्ख और बुलंद आवाज में बात करेगा। शायद वो चाहती भी यही थी, मगर इसकी तवक्का के बरक्स लाउंज में अब बिल्कुल खामोशी थी। उसे हैरत हुई, उमर चुप क्यों हो गया है? उसने सोचा। उमर अगले कई मिनट खामोश रहा। मेरे खानदान का नाम मेरे लिए किसी फख्र का बायस नहीं है। तुम्हारे लिए इस नाम की कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस खानदान का नाम ही तुम्हें बचाए हुए है, वरना तुम्हारे जैसे सैकड़ों अफसर यहाँ रुलते फिरते हैं क्योंकि उनके पीछे खानदान होता है और ना ही दौलत। सिर्फ मेहनत होती है या फिर काबिलियत, और ये दोनों वो पर हैं जो ब्यूरोक्रेसी के आसमान पर प्रवास करना नहीं सिखाते। अलीजा ने इस बार अंकल अयाज को कदर हल्के फुल्के लहजे में बात करते सुना। जिन ओहदों पर तुम रह चुके हो वहां काम करने के लिए लोग उम्रें गुजार देते हैं। बाकी बातों को तो छोड़ो, ये जो फॉरेन सर्विस से छलांग लगाकर तुम फौरन पुलिस सर्विस में आ गए हो, उसमें कितने रूल्स और रेगुलेशन हाइल होते हैं, इसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। उमर उनकी बात के जवाब में एक बार फिर खामोश रहा। अलीजा को मायूसी हुई। रात को जिस तरह वो शहबाज के बारे में जज्बाती हो रहा था, अब उसके लहजे में इस अफसुर्दगी या जज्बातियत का नामो निशान भी नहीं था। लाउंज में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर उसने अंदर कुछ सरगोशियां सुनी। अब मध्यम आवाज में अंकल अयाज और उमर के दरमियान कुछ बातें हो रही थी। आवाज इतनी मध्यम थी कि वो बात सुन सकती थी, ना समझ सकती थी। उसे तजस्सुस हो रहा था, आखिर अंकल अयाज अब उमर से क्या कह रहे थे जो वो इतनी खामोशी से सुन रहा था। मैं वो मैगजीन ज्वाइन करना चाहती हूँ जिसके बारे में उस दिन तुम बता रही थी। उस दिन शाम को वो शहला से फोन पर बात कर रही थी। ये यकदम तुम्हें मैगजीन कैसे याद आ गया? शहला ने कुछ हैरान होकर दूसरी तरफ से पूछा। बस वैसे ही, मैं घर बैठे बैठे बोर होने लगी हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ किया जाए, उसने कहा। मगर यार, मैं तो कोई एनजीओ ज्वाइन करने का सोच रही थी। आखिर हमारे सब्जेक्ट का ताल्लुक तो ऐसे ही कामों से बनता है। ये जर्नलिज्म बीच में कहाँ से आ गई? शहला ने अपना प्रोग्राम बताया। तो ठीक है, तुम एनजीओ ज्वाइन कर लो, मगर मैं तो ये मैगजीन ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन पहले तो तुम्हारा इरादा भी एनजीओ के लिए काम करने का ही था। हाँ, पहले था, लेकिन अब नहीं। क्यों, अब क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कहीं तुम्हारे कजन ने फिर तुम्हें कोई लेक्चर तो नहीं दिया? शैला फौरन मशकूक हुई। नहीं उमर, ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर? बस मैंने खुद ही अपना इरादा बदल दिया। एनजीओ के लिए भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद। यार, तुमने तो मेरा प्रोग्राम भी डामाडोल कर दिया है। क्यों, तुम्हारा प्रोग्राम क्यों डामाडोल हुआ है? तुम जानती हो मुझे हर काम तुम्हारे साथ करने की आदत है। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम मैगजीन ज्वाइन कर लो और मैं एनजीओ के साथ धक्के खाती फिरूं? तो फिर तुम भी मैगजीन ज्वाइन कर लो, इंजॉय करोगी। वैसे भी फैशन मैगजीन है, काम दिलचस्प है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, शहला ने हामी भरी। सोचो मत, बस कल चलते हैं वहां, अलीजा ने कहा। इतनी जल्दी? हाँ, इससे पहले कि वो जॉब्स किसी और को मिल जाए, हमें वहां बात कर लेनी चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां जॉब ना भी मिली तो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। पापा के इतने ताल्लुकात जरूर हैं, शहला ने उसे तसल्ली दी। जो जॉब ताल्लुकात इस्तेमाल करके मिले वो भी कोई जॉब है। मजा तो तब है जब हम अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करके ये जॉब हासिल करें, अलीजा ने फौरन कहा। ठीक है यार, चलो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर कल कितने बजे आऊं? शहला फौरन मान गई। 9 बजे मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। अलीजा ने प्रोग्राम सेट करने के बाद फोन बंद कर दिया। पेपर से फारिग होने के बाद आजकल वो घर पर ही थी और कुछ दिन पहले शहला ने उसे किसी फैशन मैगजीन से निकलने वाली कुछ जॉब्स के बारे में बताया था। अलीजा ने फौरी तौर पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसे पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मिटा हुआ है यहाँ से, इतना पसंद नहीं आया था कि वो उसे अपनाने का सोचती। उसका ख्याल था कि वो रिजल्ट के आने के बाद किसी अच्छी एनजीओ के साथ मुंसलिक होकर काम करेगी। मगर शहबाज मुनीर वाले वाकये के बाद यकदम ही उसे जर्नलिज्म में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। यही वजह थी कि आज उसने शहला को फोन करके उस जॉब के बारे में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। वो नहीं जानती थी कि नानो का इस कदम के बारे में क्या रद्द-ए-अमल होगा, मगर पिछले बहुत से सालों से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बहुत से फैसले खुद करने लगी थी। खास तौर पर नाना की डेथ के बाद नानो ने उसकी जिंदगी में पहले की तरह मुदाखलत करना छोड़ दी थी। उसे नानो की तरफ से किसी मुखालफत की तवक्का नहीं थी, और अगर नानो मुखालफत करती तो भी उन्हें कायल करने के लिए वो जहनी तौर पर तैयार थी। यहीं पे एपिसोड नंबर 8 का एंड कर लेते हैं। और बहुत कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। जुल्करनैन की हकीकत अलीजा के सामने आ जाती है, और लाने वाला भी उमर ही है, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, जैसे भी है।
وہ ذوالقرنین کھل کے علیزہ کے سامنے آ گیا، جس کے بعد علیزہ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، اور پھر اسے جیسے نانو اور نانا نے بھی سنبھالنے کی کوشش کی ہے اور جیسے عمر نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے سب سے بہترین۔ اور پھر علیزہ عمر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے، اور وہ کہہ دیتا ہے نہیں، جو ہمارا دل توڑ دیتی ہے یہ بات۔ اور اس کے علاوہ عمر کی لائف میں بھی بڑی مشکلات چل رہی ہیں، بہت ہی زیادہ مشکلات چل رہی ہیں۔ اس کے فادر اس کے لیے مسئلے مسائل ہی کھڑے کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے دوست کو بھی انہوں نے قتل کروا دیا، اس کے انکل نے اور اس کے فادر نے مل کے، جس پہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ مطلب پریزنٹ میں یہ چل رہا ہے کہ عمر کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور پاسٹ میں یہ چل رہا ہے کہ علیزہ کے ساتھ وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو وہ اس کی ذوالقرنین کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا ہے۔ اور بس اسی طرح چل رہی ہے اسٹوری، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلد آ جائے گی، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔